آج کا جو ٹاپک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے بروشرز دیکھے, آپ نے پیمفلٹس دیکھے, اور آج کا ٹاپک تھا کہ ڈیسیژن, ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن. ڈیسیژن, سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈیسیژن کیا ہے. ڈیسیژن کا مطلب ہے فیصلہ, اور ہم اپنی زندگی میں ڈیسٹینیشن فوکسڈ ہوتے ہیں, ڈائریکشن فوکسڈ ہوتے ہیں, بٹ ہم ڈیسیژن فوکسڈ نہیں ہوتے. تو آج ہم 3 Ds پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ 3: ڈیسیژن, ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن. کتنے Ds پڑھیں گے؟ بولیے, آگے نام بولیں. ڈیسیژن, ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن. اب ڈیسٹینیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بچپن سے سوچ لیا, میرے والدین نے کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. یہ کیا ہوگی؟ ڈیسٹینیشن. جب ہمارے والدین نے سوچا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ آپ پر بہت محنت کریں گے کہ آپ کے گریڈز میٹرک میں اچھے آئیں. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی ایک ڈیسیژن مل چکی ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, اور جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی سائنسز لینی ہے. آپ کی میٹرک کی ڈیسیژن کیا ہوگی؟ سائنسز. ایسا ہی ہے. بایولوجی, کمپیوٹر سائنس کی طرف آپ نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں انٹرمیڈیٹ پہ. آپ اس میں بھی فوکس کریں گے کہ آپ لیں بایولوجی, بیکاز آپ کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھ سکتے, آپ ICS نہیں پڑھ سکتے, آپ ICOM نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے جیسے ہی آپ کے پاس ڈیسیژن آئی, آپ کی ڈائریکشن لمیٹڈ ہو گئی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے ہی آپ کے پاس فیصلہ آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ویسے ہی آپ کی جو چوائسز تھی وہ نیرو ہوتی گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی ڈیسیژن میں نیرو ہوگی, یعنی کہ تنگ ہوتی گئی کہ آپ کے پاس زیادہ آپشن بچے نہیں. ایسا ہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے ہی, ہمارے پیرنٹس, کس کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے ان کے لیے بچپن میں کوئی سپنے دیکھے تھے؟ بے شک وہ سپنے آج ٹوٹ گئے ہیں, لیکن سپنے تو آپ کے پیرنٹس سے دیکھے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے بچوں کی زندگی میں ایک گول ہے. جیسے ہی ہمارے کرسچن بچے, ہمارے مسیح بچے جوان ہوتے ہیں, 15-16 کے ہوتے ہیں, تو وہ ایک چیز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. کوئی مجھے جواب دے گا کیا؟ پیار. کیا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں؟ کس کا؟ اپوزٹ جینڈر کا. کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اس سے زیادہ ضروری کام ان کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ ان کو شاید گھر سے ٹینشن نہیں ملتی. کرسچن فیملیز میں پیرنٹس کی بہت زیادہ نیگلیجنس ہوتی ہے, اور ہمارے بچے اسی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ ہم انسان ہیں, اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں اپریسیشن اچھی لگتی ہے, ہمیں تعریف اچھی لگتی ہے, اور ہمیں محبت اچھی لگتی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ محبت ہیں. تو ہمارے اندر محبت کا جو انگریڈینٹ ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گی, آپ کا دل آج افسردہ ہے, پریشان ہے, آپ کے مالی حالات خراب ہیں, کوئی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں چل رہی ہے, میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں کہ 10 on 10 میرا سرمن اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس میں اپنی زندگی کی مثال کو مکس کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ کی ایک ڈیسیژن اور اس ڈیسیژن پر کھڑے رہنا آپ کی زندگی کو 360 ڈگریز کے اینگل پر چینج کر کے رکھ سکتی ہے. جب بھائی ورشپ کرتے تو بھائی کے گیتوں میں میں نے ایک بات نوٹ کی, اور وہ بات یہ تھی کہ بھائی کے سارے گیت اس بات پہ تھے کہ صلیب پر تھے اور ہم نے خدا سے کتنی محبت کرنی ہے. بھائی نے آپ کا فوکس اس بات پہ بلڈ کیا کہ آپ نے خدا سے کتنی محبت کرنی ہے, لیکن میں آپ کا فوکس اس بات پہ بلڈ کروں گی کہ خدا نے آپ سے کتنی محبت کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی وفاداری, وہ کہتا ہے پنجابی میں, وہ زبور ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہتھیار ہیں وہ تیری وفاداری ہیں. تو اس کے ہماری جو ہتھیار ہے, ہمارا جو ویپن ہے, وہ اس کی فیتھفلنس ہے. تو جب کل ویلنٹائنس ڈے تھا تو میں نے کہا میں بچوں کو ضرور یہ گائیڈ کروں گی کہ دنیا کا سب سے لیمسٹ کام آپ یہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, اگر آپ یہ چیز ڈھونڈنے نکل گئے ہیں کہ آپ کو اپنی زیڈ جنگ A to B, A B C D E F G whatever till Z, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے A گول کو میٹ نہیں کیا, B کو نہیں کیا, C کو نہیں کیا, D کو نہیں کیا, E کو نہیں کیا, اور آپ Z پہ چلے گئے بیکاز آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ کی کوئی فینٹیسی بنی ہوئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی زندگی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو پھر ہم شادی کے جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط ڈیسیژن لے لی. میں شادی کے خلاف نہیں ہوں, خدا نے ایک کوننٹ بنایا ہے اور میں اس کا 100% سپورٹ کرتی ہوں. بٹ کیا آپ شور ہیں
کہ جس کو آپ پرسو کر رہے ہیں وہ خدا نے آپ کے مشن اور پلان میں بھیجی ہے یا بھیجا ہے؟ کیا آپ شور ہیں اس بات کے لیے؟ تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی ریلیشن شپس میں ہے تو آج رات کو جا کے سوچیے گا کہ کیا میں اپنے اس ریلیشن شپ پہ فوکس کر رہا ہوں جس کے لیے میں کالڈ ہوں، جس کے لیے میں اسائنڈ ہوں، جس پرپس سے خدا نے مجھے بلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی نمبر 1 کالنگ کیا ہے؟ جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھائی ہیں، پرستار ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ مینیجر ہیں، ایڈیٹر ہیں، کیمرہ مین ہیں، ورشپر بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ ہماری پریزائڈر ہیں، تمر ہیں، شام کی اپنی ڈیوٹیاں، سب کی جو ڈیوٹی ہیں whatever. میرا کام ہے، میں اسپوکس پرسن ہوں، میں بولتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میری اس کالنگ سے پہلے میری ایک کالنگ ہے، اور وہ یہ کالنگ نہیں ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، وہ یہ کالنگ نہیں ہے کہ میں نے تعلیم لینی ہے، وہ یہ کالنگ نہیں ہے کہ میں نے گھر چلانا ہے، وہ یہ کالنگ نہیں ہے کہ میں نے برتن دھونے ہیں. اس سے پہلے ایک کالنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ریلیشن شپ ود جیزس کو فکس کرنا ہے. کیا ہماری سب سے پہلے کالنگ ہے؟ ریلیشن شپ ود جیزس کو فکس کرنا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ الٹا چل رہے ہیں. لوگ اپنی زندگی میں سب کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا ان کے ان کاموں کو بلیس کرے. آپ دیکھنا، آپ بہت لیس ایسے سیمینارز کو اٹینڈ کریں گے، بیکاز میں نے کبھی بھی اپنی 33 ایئرس کی ہوں، اور میں نے کبھی بھی ایسے سیمینارز اٹینڈ نہیں کیے جہاں پہ مجھے بتایا جائے کہ آپ خدا کی ول کو اپنی زندگی کے لیے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، خدا کی مرضی آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے. بیکاز جب میں دنیا کے بچوں سے ملتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے بروکن ہیں، اپسٹ ہیں، سیڈ ہیں، ٹمڈ ہیں، شائے ہیں، افسردہ ہیں، اور ان کے گھروں میں چیزیں نہیں ہیں. اور ہمارے بچے اس لیے غیر قوموں سے امپریس ہو رہے ہیں اور اٹریکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ غیر قوموں کے پاس یہ چیزیں ہیں اور دنیا کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں چلے جاتے ہیں یا ہم ان جیسے بن جاتے ہیں. اور جب وہ ان جیسے بننا شروع کرتے ہیں تو شیطان آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے، اور جب چور آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چراتا ہے اور مار ڈالتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شروع پیشن سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چرچز میں غیر زبان کی دعا پر بہت فوکس کیا جاتا ہے، پاک روح کے بپتسموں پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان تمام باتوں پہ بلیو کرتی ہوں، بٹ ہمارے بچوں کو ڈاکٹرائن نہیں دی جاتی، یہ نہیں بتایا جاتا کہ خدا نے ان کے لیے ان کا کیا پرپس رکھا ہوا ہے. یا پھر ہم بہت زیادہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا اے بیٹے، اگر پاسٹر صاحب نے دیکھ لیا کہ بچہ گا رہا ہے تو وہ ہاتھ رکھے اور کہے گا تو ایک بہت بڑا پرستار بنے گا. اس کو خدا نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ میں اس بات میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہوں کہ آپ کیسے کسی کی کالنگ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور کیسے کسی کی زندگی میں ورڈ بول سکتے ہیں جب تک کہ یقیناً آپ شور نہیں ہیں کہ آپ نے خدا سے سنا ہے. سو آج میں آپ کی بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کرنے لگی ہوں. تو لونلیس کیا ہے؟ آپ کے ایک دل کی ایک سٹیٹ ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ اکیلے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ایک بندہ جس کے پاس ویژن نہیں ہے اس کو اپنا آپ تنہا لگتا ہے. میں نے کیا بولا؟ جس کے پاس رویا نہیں ہے، اور رویا سے میرا مطلب وہ نہیں جو میں دیکھ سکتی ہوں آپ کے لیے یا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیے یا کوئی اور دیکھ سکتا ہے جس کے پاس رویا کی دیکھنے کی نعمت ہو یا توڑا ہو. میں اس رویا کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی ڈیسٹنی کلیئر نہیں ہے. اور آپ کیا کریں؟ کیونکہ آپ کے پاس ڈیسٹنی کلیئر نہیں ہے تو آپ ہر بار خدا کے ساتھ پیشن سے شروع کرتے ہیں لیکن پھر دوبارہ پرانے سڑکوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. کس کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن نہیں ہے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں بٹ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ پرانے روڈز پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر مجھے 2020 میں یہ پتہ نہ ہوتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے تو کیا میں دوبارہ کسی اسکول میں ٹیچر نہیں لگ سکتی تھی؟ آپ کو پتا جس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا 2020 میں کہ اب میں ہولی سولی اپنے میں اس حد تک میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. میرے ایک رجسٹر ہے، آج بھی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے لکھا تھا اپنی زندگی میں کہ آئی کوئٹ، اور میں کوئٹ کر چکی تھی. زندگی میں میری سچویشنز اتنی انٹینس نہیں تھی، بٹ آپ جب ایموشنل پرسن ہو تو انٹینس ہو جاتی ہے. اب مجھے وہ بہت لائٹ افلیکشنس لگتی ہیں، اب مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یار اس ٹائم کا پریشر آج وہ مجھے کوئی پریشر نہیں لگتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے میں نے وہ جو رونا دھونا ڈالا تھا وہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا تھا. تو آپ بھی زندگی کے اس پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں جہاں پر آپ اتنے خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے اولڈ ڈیز یاد بھی نہیں رہیں گے. ہاللیلویا. اور آپ کہیں گے یار وہ میں مذاق کرتا تھا، اور آپ جب اپنی گواہی سنانے لگیں گے تو آپ کو خود شرم آ رہی ہوگی، اور کبھی کبھی مجھے بھی آ رہی تھی کہ میں کدھر تھی اور مجھے خدا کدھر اٹھا لے آیا. اب چلتے ہیں 2020 میں نے ڈیسائیڈ کیا. اس ٹائم مجھے ایک بہت اچھی گورنمنٹ جاب کی آفر آئی، 70-80,000 سیلری تھی اس ٹائم کے لحاظ سے بتا رہی ہوں، 5 سال پہلے کی. اب 70-80,000 اچھی تھی، اور
सिंगल बंदा अच्छा कमाएगा, खाएगा, पिएगा, मेरे पास ऑप्शन था, मैं जा सकती थी। मेरी मदर की तरफ से मुझे बहुत परसिक्यूशन का सामना था, और मेरी परसिक्यूशन बाहर वाले लोग नहीं करते, मेरे अपने घर वाले कर रहे थे। और मेरे घर वाले, जब मैं कलाम पढ़ती थी तो मेरे घर वाले कहते थे ये फारिग है। किस किस को ये जुमला सुनने को मिलता है कलाम पढ़ते वक्त? मुझे तो बहुत दफ़ा मिलता है कभी कभी अभी भी मिल जाता है। क्या आपको नहीं मिला? इसका मतलब आप कलाम नहीं पढ़ते, ऐसा ही है। अगर आपने ये जुमला नहीं सुना तो इसका मतलब आप कलाम नहीं पढ़ते। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि जब आप कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता पंजाबी घरों में ये जुमला ना बोला जाए कि ये फारिग है, ये फारिग है, इसका कोई काम नहीं है। कलाम पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कलाम ही पढ़ते रहें, और भी ज़िंदगी में काम करने होते हैं। तुमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है? मेरी मदर भी USA में बैठी हुई है, वो अभी भी मुझे कॉल कर रहती है, तेरा आगे से क्या प्लान है? मैंने कहा प्लान ये है कि आपको कहीं और भेजना है, आप किसी और मुल्क और कोई प्लान नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस स्टेट में नहीं लिव करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी लोनली नहीं थी, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँगा। बट क्या आप कलाम को उस तरह ले रहे हैं जिसका मैंने एक दिन डिसाइड किया था? गर्मी थी, सर्दी थी, धूप थी, छाँव थी, मैंने इतना वर्ड पढ़ा, इतना वर्ड पढ़ा, इतना वर्ड पढ़ा, इतना वर्ड पढ़ा, इतना वर्ड पढ़ा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आज जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मेरे पास कभी भी बोलने की एबिलिटी इस तरह की नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा माइक से डरती थी। माइक का मुझे बहुत ज़्यादा फियर था। टीचर थी, इंट्रोवर्ट नहीं थी, एक्सट्रोवर्ट थी, बट माइक का मुझे काफ़ी ज़्यादा फियर था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह खड़े होकर लोगों को खुदा का मैसेज दूंगी। लेकिन इसके लिए खुदा ने मेरी 5 साल ट्रेनिंग करवाई, और 5 साल खुदा ने मुझे अंडरग्राउंड रख के मेरे बोलने के स्टाइल को चेंज किया, मुझे तरतीब दी मेरे लफ्ज़ों को, और मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग फ्लो की कि अब आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दें, मैं 10 घंटे से भी ऊपर बोल सकती हूँ विदाउट पानी पिए। और ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा अपना टैलेंट नहीं है, ये मेरा गिफ्ट है। और मैं आपको आज ये बताऊंगी कि जब खुदा आपको कोई गिफ्ट देगा और उसमें आप चलेंगे तो आपके पास अनॉइंटिंग होगी, आप बोल सकेंगे, आप सुपर नेचुरल में चल सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी दुआएं नहीं करनी पड़ेंगी। अक्सर चर्चेस में ऐसा होता है, खादिम के आने से पहले एक बंदा उठता है दुआ के लिए, खादिम के लिए दुआ करें, खादिम के लिए दुआ करें, खादिम के लिए दुआ करें। मैं इस गिफ्ट में चलती हूँ, एंड आई एम श्योर ये मेरी एरोगेंस का जुमला नहीं है, लेकिन आप मुझे समझने लग जाएंगे जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जीसस के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। और जब मैंने जीसस के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना शुरू किया तो सुनिएगा मेरी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आई। अभी हालात तब्दील नहीं हुए, अभी फाइनेंसेस चेंज नहीं हुए, अभी शक्ल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत सवेर किस्म की अडल्ट एक्नी हो गई थी, और जितना दाना मेरा बाहर था उतना 10 गुना मेरे मुंह पे दाने थे। मेरे दाने इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती अपने फेस की एक्नी से, और भी बहुत सारी चीज़ें बदन में चल रही थी। अब जब इतनी स्ट्रेस से गुजरी हूँ, हुआ कुछ भी नहीं था मेरे साथ एज सच, बट हम कहते हैं ना कि हमें अपनी फ्यूचर की फ़िक्र पड़ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ये फ़िक्र होती है कि हम कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या तो मेरी कॉलिंग मुझे तंग करती जो खुदा ने रखी हुई थी। बॉर्न अगेन मैं 2011 में हुई, लेकिन 2011 में बॉर्न अगेन होने के बाद मैं खुदा की वॉइस को मिरेकल्स के लिए तो सुनती थी, बट उसको 100% सरेंडर नहीं किया गया था। और जब मैंने 2020 के बाद खुदावंद को 100% सरेंडर किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दिन है और आज का दिन है, आज की तारीख रिकॉर्ड कर लें, मेरे पास एक दिन भी ना पैसे की कमी हुई और ना किसी और तरह के आराम की कमी हुई। एक दिन भी मैंने एक दिन भी किसी को नहीं बोला मुझे उधार चाहिए, क्या तो मुझे दे सकते हो। और क्योंकि मैं ये एश्योरेंस में मूव करती हूँ कि खुदा ने मुझे सप्लाई दिया। मैं जॉब नहीं करती, मुझे खुदा ने कहा था 2021 में, मुझे खुदा ने एक शाम कहा जॉब छोड़ दे, और अगले दिन मैंने जॉब छोड़ दी थी। कोविड के दिन चल रहे थे, सब लोग परेशान थे, लोग जॉब्स को ढूंढ रहे थे, और मैं डिसाइड करके बैठी हुई थी कि मैं जॉब छोड़ी हूँ। मेरी वालदा ने मुझे ठीक ठाक बातें सुनाई, बहुत बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई यहाँ बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी वालदा की शुक्रगुजार हूँ। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमें जहाँ तक भी उन्होंने पहुँचाया वो हमारी रोल मॉडल है, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सो मैं अपनी वालदा से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो कहता है कि कलाम के सबब से तुम पर जुल्म होगा। किसके सबब से? कलाम। हमारे वालिदैन बुरे नहीं हैं, पर जब आप कलाम की तरफ जाएंगे तो आप पर जुल्म होना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है कि हम उस जुल्म के वक्त भाग जाते हैं। हम क्या करते हैं? उस जुल्म के वक्त हम भाग जाते हैं। सो लोनलीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड मैंने अपना बना लिया था कि मैं लोनली हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत है। बट खुदा ने मुझे फिर लंबे अरसे के लिए कह दिया कि तू शादी को ऐसे भूल जा कि तूने जैसे शादी करनी नहीं है।
और मैं राइट टाइम पे राइट पर्सन को तेरे लिए लेकर आऊँगा। और मैं आपको बताऊँ, ये गोल नहीं रहा ज़िंदगी का, और ना ही शादी ये पर्पस रही। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जवान बैठे हुए हैं, और ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आदम के बनने के बाद खुदा ने पहले उसको पर्पस दिया था, उसको काम दिया था, या पहले हवा बना दी थी? पहले पर्पस दिया था। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में पहले पर्पस को डिस्कस किया गया है कि तुम जाओ, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और उसके बाद आती है दूसरे चैप्टर में कौन? मिस हवा। ऐसा ही है, ईव आ जाती है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पहले आदम बनाया गया, उसका पर्पस बनाया गया। अब जब वो अपने पर्पस को पूरा करते करते उसको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो खुदा एक मददगार उसके लिए भेजता है। आगे सुने, अब मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस। सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस के लिए। आपके वालिदैन ने ये डिसीजन नहीं लेनी। जब आपने पुट्ठा काम करना होता है तो आपके वालिदैन आपको कहते हैं, किस किस को मेरी बात समझाइए, जब आपने कोई उल्टा काम करना है तो क्या आप अपने वालिदैन से पूछ के करते हैं? उनसे डिस्कस करते हैं? आपकी चाहत होती है, आप कर जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? सो आज आपकी जो मेजर चीज़ है वो लाइफ की चॉइस है और डिसीजन है, और वो डिसाइड करेगी कि क्या आपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलना है, खुदा की बरकत की तरफ चलना है, अनॉइंटिंग की तरफ चलना है, हैप्पीनेस की तरफ चलना है, जॉय की तरफ चलना है, ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग होना है, या आपने वही गरीब मजलूम गवार बने रहना है। किस किस को मेरे, और जब मैं गवार कहती हूँ तो मैं ये गवार नहीं कह रही कि आपके पास तालीम की डिग्री कौन सी है, लेकिन मैं गवार उसको कहती हूँ जिसके पास खुदा का राइट नॉलेज नहीं है। किस किस को समझ आ रही है? मेरे नज़दीक गवार वो नहीं है जिसके पास तालीम नहीं है। मैंने खुद मास्टर्स की हुई है, बट मैं मुझे आज तक मेरी मास्टर्स की डिग्री ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। किस किस को बात समझाइए? मेरा आखिरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? मैंने मास्टर्स की हुई है। मेरा कौन सा आखिरी इंट्रोडक्शन? मैंने क्या बोला? मेरा आखिरी इंट्रोडक्शन होता है, वो भी कोई पूछ ले तो ठीक है, सही है। नहीं पूछेगा वो मुझे कहेगा इसने 10वीं पढ़ी, मैं मान लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आई रियली डोंट केयर मेरी क्या एजुकेशन है। बट मैंने नहीं कहा अब आप स्कूल छोड़ के बैठे। मैम ने कहा था घर जाके बोले, मैम ने कहा था मैट्रिक की क्यों, तो कोई आप पढ़ें जितना मर्जी पढ़ना है। हो सकता है कि आप डॉक्टर बने और उस एरिया में खुद आपको इस्तेमाल करें। हो सकता है आप वर्शिपर हैं, खुद आपको उस एरिया में इस्तेमाल करें। क्या पता आप मदर हैं, मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मेरी माँ की सख्ती ना होती, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, तो आज मेरी ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते, बट मेरी ज़िंदगी में एक रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी माँ की सुपरविजन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो सिंगल मदर हो के भी घर में चारों तरफ नज़र रखती थी, और हम चारों बहनों ने खुदा की आवाज़ को फॉलो किया। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी बात नहीं कि बीइंग अ मदर अब आप सोचें कि अब यार हमारी तो कॉलिंग है नहीं, ये तो बच्चों का सेमिनार है। मैंने किसी पेज के ग्रुप में भी लिखा था, ये नहीं सोचना सेमिनार इसलिए अटेंड करना कि ये बच्चों का सेमिनार है तो बच्चे चल जाए। ओह हेलो, लेट मी टेल यू वन थिंग। भाई ने वर्ड्स कोट कर दी कि जवान कैसे हैं, जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और आपके बच्चे मेरे हाथ में हैं और उन तीरों को मैं ट्रेन कर रही हूँ कि वो राइट जगह पर शूट कर सके। और खुदा ने मुझे अनॉइंटिंग दी है, कोई बच्चा ठहर नहीं सकता मेरे सामने काबू में आए बगैर। सो आपने अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन लेनी। अच्छा जी, फिर अब आते हैं आपके इमोशंस। आप फैसले कैसे करते हैं? जज्बात से, होश से, अक्ल से कैसे करते हैं? अगर आप जज्बात से फैसले करते तो दोनों हाथ ऊपर करें। मैं पहले करती थी फुल ऑन जज्बाती फैसले, मरेंगे, मारेंगे, जिंदा नहीं बचेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करेंगे। क्या आप भी ऐसे थे? सो आप जज्बात से फैसले करते हैं या खुदा की रूह से? अब झूठ नहीं बोला मेरे सामने, आप जज्बात से फैसले करते हैं। आपको गुस्सा है, आपने उस दिन अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले ली, अब देखो मैं अपने वालिदैन को ऐसा मज़ा चखाऊंगा ना, ये समझते हैं कि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को अजीन किया है। मुझे iPhone 16 चाहिए, इसलिए अब मैं दोस्तियाँ लगाऊंगा बाहर। कोई भी, मैंने देखा है बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोस्तियाँ लगा लेते हैं बाहर, और मैं हैरान हूँ कि आप चीज़ों के पीछे कैसे दोस्तियाँ लगा सकते हैं, और आप चीज़ों के पीछे कैसे भाग सकते हैं। और आप ये क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं वर्शिप को कब इंजॉय करती हूँ, वैसे तो हमेशा ही करती हूँ, मैं हर जगह पर वर्शिप को टारगेट ज़रूर करती हूँ। ऐसा ही है, और मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी ग्रेटेस्ट वर्शिप ये है कि जब आपकी ज़िंदगी से मिरेकल्स निकले। ऐसा ही है,
आपकी ग्रेटेस्ट वर्शिप ये है जब आप कहें, आपके पास कोई आए कि मुझे उधार चाहिए और आप कहें ले, क्योंकि आपके पास हर वक्त काफ़ी कुछ मौजूद हो। आपकी ग्रेटेस्ट वर्शिप ये है कि कोई आपके पास आए और वो बीमार हो, आप उसके लिए दुआ करें और वो चल कर जाए। आपकी ग्रेटेस्ट वर्शिप ये है कि जब आपके साथ कोई बैठे तो वो जीसस इन्फ्लुएंस्ड होके जाए। अगर आपका डिवाइन रिलेशनशिप नहीं है तो आप गलत पैटर्न पे जा रहे हैं। आप जेज़ेबेल को अपनी ज़िंदगी में दावत दे रहे हैं। किस किस को समझ आ रही है? आप या तो जेज़ेबेल को अपनी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में डिलाइला एंटर हो चुकी है। और डिलाइला क्या करेगी? मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रही, इसमें लड़कों को भी कह रही, वाइस वर्सा। डिलाइला ने क्या किया था? समसून की ताकत को उससे छीन लिया था। इसका मतलब है जज्बात आपको नकम्मा कर देते हैं। जज्बात क्या करते हैं? आपको नकम्मा कर देते हैं। और जिस बात को आपने अलाउ नहीं करना कि आज से वो आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सकें, क्योंकि पाक रूह हमारा वो जीपीएस है जो हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शंस को चेंज करना चाहता है। और क्या आपकी ज़िंदगी में पाक रूह की आवाज़ लाउड है? क्योंकि उसने कहा था एक मददगार तुम्हें भेजूंगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें वो बातें भी याद कराएगा जो मैंने कही हैं, और वो तुम्हें बताएगा कि तुमने कब कहाँ कैसे करना है। ऐसा है कि नहीं है? तो आप क्या अपने जीपीएस को इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज आपकी एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल टर्न करके रख सकती है। जैसे मैंने कहा 2020 की मेरी एक डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, तो आपकी एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। अब आपने इमोशंस को अलाउ नहीं करना कि वो आपके लिए फ़ैसला करें, क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं? टेम्प्रेरी होते हैं। आपको पता है कि अगर हमें अभी भूख लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं घर में हूँ और मुझे भूख लगेगी, और आप देखेंगे जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। ऐसा ही है, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता जब खाना घर में लेट बने तो हमें गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही हम 5 मिनट में रोटी खा के बैठ जाते हैं हमारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब है इमोशंस टेम्परेरी हैं और वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, और उनका हमारी ज़िंदगी में डिसीजन का होल्ड नहीं होना चाहिए। जज्बात आपकी ज़िंदगी में फैसले मत लें। किस किस को समझ आ रही है? हाथ खड़ा करें। जज्बात आपकी ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं लें, क्योंकि जज्बात आपकी कॉलिंग को डिले कर रहे हैं, आपके गॉड गिवन पर्पस को डिले कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मैं बॉर्न अगेन 2011 में हुई, लेकिन 2020 में 10 साल मैं आज इससे बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री का काम कर रही थी। बट इट्स नेवर टू लेट कि हम खुदा में स्टार्ट करें। पर मैंने कहा कि जज्बात और थोड़ी देर का प्लेजर और थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट हमारे लिए वैल्यूबल होती है। अब एवरेज क्रिश्चियन क्या करता है? एवरेज क्रिश्चियन, ठीक है ना, जो संडे गोइंग क्रिश्चियन है, वो क्या करता है? उसको पता ही नहीं है कि खुदा उससे क्या चाहता है। आप में से कोई ऐसा है जो श्योर है कि इस वक्त वो खुदा के प्लान में है और जो खुदा ने उसको जहाँ पर रखा है वो वहीं पर है? क्या आप में से कोई इतना श्योर है कि आप खुदा के प्लान में हैं? आप श्योर हैं आपने खुदा को कॉलिंग को सुन लिया? अगर सुन लिया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुना, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग राइट प्लेस में हो लेकिन आप श्योर नहीं हैं और आप इस प्लेस से खुश नहीं हैं, और आपको जब ट्रिबुलेशंस, परसिक्यूशंस, मुसीबतें आ रही हैं तो आपको लग रहा है ये खुदा का प्लान नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है कि आप राइट प्लेस में हो और आपको मुश्किलें हो, मुसीबतें हो, परेशानियाँ, और आपको लग रहा हो कि ये खुदा की मर्जी नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि एवरेज क्रिश्चियन क्या कर रहा है? एवरेज क्रिश्चियन ये बात नहीं जानता कि उसके लिए खुदा ने क्या प्लान रखा हुआ है। और एवरेज का उर्दू वर्ड हम क्या लेंगे? एक आम मसीही ये बात नहीं जानता कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में क्या प्लान रखा हुआ है। आपने पानी की एग्जांपल मैं हमेशा अपने सर्मन्स में कोट करती हूँ, आप लोगों के लिए भी करूँगी। पानी को अगर मैं यहाँ से गिराना शुरू करती हूँ तो वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? वो नीचे आएगा। लेकिन अगर ऊपर मैंने करना है, अगर मैं चाहती हूँ ये बॉटल पानी ऊपर करे, तो मैं क्या करूँगी? मैं बॉटल को नीचे से प्रेस करूँगी। ऐसा ही है, अगर मैं चाहती हूँ कि इस बॉटल का पानी नीचे आए तो मैं कैप खोलूंगी और मैं सिर्फ यूं ही कर दूंगी तो पानी गिरने लग जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैंने पानी, मैं चाहती हूँ, मैंने यूं बॉटल पकड़ी और मैं चाहती हूँ कि पानी ऊपर जाए, तो मैं क्या करूँगी? इस बॉटल को प्रेस करने लग जाऊँगी। इसका मतलब है प्रेशर लगेगा, पावर लगेगी, एनर्जी लगेगी। अब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारे? लोग पानी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिधर जगह मिल रही है और जैसे फ्लो कर सकता है करता जा रहा है। और अक्सर लोग कहते हैं गो विद द फ्लो। सुना आपने ये मुहावरा? इंग्लिश में कहा जाता है गो विद द फ्लो, बट आई एम अगेंस्ट दिस थिंग। आप फ्लो के साथ नहीं चल सकते, वरना आपकी ज़िंदगी सर्कमस्टांसेस और लोग डिसाइड करेंगे, और जिस बात डिसाइड करेंगे, ना कि खुदा का रूह। आपको पॉइंट समझाया दाइम? आपकी ज़िंदगी कौन डिसाइड करेगा फिर? खुदा का रूह नहीं, आपके जज्बात, आपके हालात,
आपके पैसे, अगर मैं आज आपको कहती हूँ आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ओपन है, एडमिशन्स ओपन है, मुझे सारा सिस्टम आता है, हमारे पास बहन है सरिश, वो आपको सारी गाइडलाइंस देंगी। एक बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल को समझिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूके की जो यूनिवर्सिटी है, आप में से कितने हैं जो उसके लिए अप्लाई कर देंगे? समझे, सब ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सब कॉलेज पास है, करेंगे? आप में से 99% लोग कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं कि हम अप्लाई करें। ऐसा ही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जेब हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है। क्या ऐसा नहीं है? क्या हमारी जेब हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही? बट आदम को बनाने से पहले खुदा ने ये तो नहीं कहा था कि तेरी जेब बताएगी कि तूने ज़मीन पर क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। खुदा ने उसके आने से पहले उसका पर्पस, उसके लिए तमाम प्रोविज़न रेडी करके रखा हुआ था। ऐसा है कि नहीं है? आगे चलते हैं। सो आपने एवरेज क्रिश्चियन नहीं बनना है। जेब आपकी, मैंने कहा जेब भी, जिस बात तो एक साइड पे रखते हैं, इवन आपकी जेब भी डिसाइड नहीं करे। अगर आपके पास बहुत पैसे भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में कॉन्करर हैं। अगर आप सब कुछ हासिल कर लें लेकिन आप यीशु मसीह से वाकिफ़ नहीं हुए, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। मैंने क्या बोला? अगर आप सब कुछ हासिल कर लें और आपने खुदा यीशु मसीह को नहीं जाना और अपनी कॉल को नहीं जाना, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। मैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त खुदा में रहते हुए बता रही हूँ कि मैं अपने बेस्ट डेज में हूँ। मैं अपनी लाइफ को रात को भी इंजॉय कर रही हूँ, दिन को भी इंजॉय कर रही हूँ, दोपहर को भी इंजॉय कर रही हूँ। फिक्र ना फाका, फुल टाइम में इंजॉय है। आगे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सो क्या आपकी ज़िंदगी पानी की तरह है और आप रेजिस्टेंस को देखकर वो काम नहीं करते हैं? क्या आप वेट कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी जैसे लेके जा रही है, मामा ने जो कह दिया, पापा ने जो कह दिया, दोस्तों ने कह दिया। मैं बच्चों को सुन रही होती हूँ, वो यूनिवर्सिटी इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा था, क्योंकि उनकी 4 सहेलियाँ उस यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, इसलिए वो उस यूनिवर्सिटी में चली गई। सीरियसली, दोस्तों ने, एक दोस्त ने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, सारे ही आगे कॉल सेंटर में। ऐसा है कि नहीं है? आपने ऐसा, क्या आप अपने बाइबल स्कूल में सबको लेकर आ रहे हैं? आप देखें, आप बाइबल स्कूल ज्वाइन करेंगे, आपके दोस्त नहीं आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? आज मेरे साथ देखते हैं ज़बूर 139, ज़बूर 139। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का आपकी ज़िंदगी में पर्पस पहले से ही मौजूद है। बाइबल ज़रूर ओपन कर लें। ज़बूर 139 और उसकी 139 और उसकी वर्स नंबर 13 से मैं पढ़ूंगी। आप मेरे साथ पढ़ना शुरू करें, सब मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। 13 आयत से पढ़ना शुरू करें। 13 आयत से, सब यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं और खुद पढ़ना शुरू करें। चलें जी, सब ऊंचा पढ़ें। ऊंचा ऊंचा। अच्छा, क्योंकि मैं, सुने क्या कहता है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। किसने? और ये आप लोगों की बात की जा रही है। कहता है क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है और मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ और तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं और मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरे किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। लास्ट पॉइंट पे गौर करेंगे। कहता है मेरी ज़िंदगी के अयाम सारे लिखे थे जबकि अभी एक भी वजूद में आया ना था। आपकी ज़िंदगी क्या हर दिन उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे? क्या बोला उसने? मेरी ज़िंदगी के सब अयाम तेरी किताब में लिखे हुए थे जब मैं वजूद में भी नहीं आया था या एक भी दिन मैंने इस ज़मीन पर स्टार्ट नहीं किया था। आप पर्पस से बाहर हैं। पर्पस तो आपके पैदा होने से पहले बना हुआ है। किस किस को समझ आ रही है?
آپ پرپس سے باہر ہیں. پرپس آپ کا اس کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کالنگ صرف میری طرح مائک پکڑنا نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کال صرف اس بچے پہ ہے. میں کسی سے بات کرتی ہوں, انہوں نے بولا, ان سے میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ میرے ایک بچے پر خدا نے چنا ہوا, میرے ایک بچوں کو, لیکن میرے باقی 2 بچوں کو خدا نے نہیں چنا ہوا. اور یہ غلط جملہ ہے. بچہ بن ہی نہیں سکتا اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو. اور ہر جان جو ماں کے پیٹ میں بنتی ہے اس کو خدا نے لکھا ہوا ہے. ہر جان ایک اپنا ایک اسپیسیفک اور ڈیٹیلڈ پلان لے کر آ رہی ہے. میں نے کیا بولا؟ ہر جان اپنا ایک اسپیسیفک اور ڈیٹیلڈ پلان لے کر آ رہی ہے. بٹ ہم اس جان کو ڈسکور نہیں کرنے دیتے کہ خدا نے اس کے لیے کیا پلان رکھا, اور ہم اس کو خود سے پلان بتانے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم اپنے بچوں کو خود سے بتانے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ لوگ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جو حالات لے آئے, جو سچویشن لے آئے, جو کسی کی فیلوشپ ان کی زندگی میں لے آئی, اور وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ان کو بلیس کرے. جب آپ پادری صاحب کے پاس آتے ہیں تو آپ یہی دعا کراتے ہیں نا. آپ نے کبھی پادری صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ پادری صاحب مجھے بتائیں کہ میری زندگی کا پلان کیا ہے, جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلان بنا دیا, آپ دعا کر دیں کہ یہ کام ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ آپ صرف دعا کر دیں؟ اور میرے پاس بھی لوگ صرف دعا کے لیے آتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ کچھ ایسی دعائیں کرنے کو کہتے ہیں جس سے میں رک جاتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ آپ نے خدا کو سنا ہے اور یہ خدا آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے. بیکاز جو چیز میں خدا کی مرضی ہوگی اس پر آپ کا گفٹ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ آپ فلو کر سکتے ہیں. سو ایک اور آیت دیکھیں گے. خدا نے آپ کو, آج میں کلیئر کروں گی کہ خدا نے آپ کو چوائس دی ہوئی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں خود بخود کام کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. آپ میں سے کتنے کو لگتا ہے کہ خدا سوورن گاڈ ہے, اور خدا اپنے اس زمین پہ پتہ بھی ہل رہا ہے وہ خدا کی مرضی ہے, اس زمین میں طوفان آ رہا ہے خدا کی مرضی ہے, بارش خدا کی مرضی سے آ رہی ہے, غربت خدا کی مرضی سے, اور جس بھی خدا نے ہمیں پیدا کیا خدا کی مرضی ہے, اور جس جگہ پہ جس حال میں بھی ہمیں خدا نے اس حال میں رکھا ہوا ہے. ہاتھ کھڑا کر لیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جس بھی حال میں ہیں وہ خدا نے آپ کو رکھا ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خدا ہمارے حال اور حالات اور احوال ڈیسائیڈ کرتا ہے یا ہم نے خود کرنا ہے. آئیں دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 30 باب کی 19 آیت. سب نکالیں اور سب پڑھیں. تیری اولاد بھی, خدا نے آپ کے آگے کیا رکھا ہے؟ زندگی اور موت کو, اور برکت اور لعنت کو. اور ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ کہتا ہے لیکن تو کیا چوز کر, تو کیا چوز کر؟ لائف. لائف کیا ہے؟ زندگی. کیونکہ خدا یسوع مسیح کس لیے آئے؟ کہ ہم کیا پائیں؟ یہ اتنی کامن ورڈ ہے سب چرچز میں, ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آپ کے حالات خدا ڈیسائیڈ نہیں کر رہا. میں کلیئر ہوں؟ خدا نے آپ کو یہ ڈیسیجن دی ہے کیونکہ خدا نے آپ کو روبوٹس نہیں بنایا. روبوٹس پتہ نا کیسے چلتے ہیں؟ کیسے چلتے ہیں؟ ریموٹ کنٹرول سے. ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل ویکیوم کلینر لے لیتے ہیں, آج کل کے لیٹسٹ ٹائم ہے, خود ہی صفائی کر دیتے ہیں, لیکن اس کو انسٹرکشن آپ نے دینی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کتنے منٹ چلنا ہے, اور پھر وہ اس ایریا کو صاف کر دے گا. ایسا ہی ہے. آپ آٹومیٹک واشنگ مشین یوز کرتے ہیں, وہ بھی ایک روبوٹ ہے, وہ ہمارے لیے کپڑے دھو رہی ہے. ہم نے اس کو کمانڈ دینا ہے. کبھی آپ کی واشنگ مشین نے کہا میں ذرا جا رہی ہوں کپڑے اوپر دھوپ میں ڈالنے بھی جا رہی ہوں. کبھی واشنگ مشین نے کام کیا ہے؟ کبھی آپ کی واشنگ مشین کپڑے دھوپ میں ڈالنے گئی ہے پھر آپ اس کو چھت سے اتار کے لا رہے ہیں؟ وہ نہیں کرے گی, وہ روبوٹ ہے. اس کا ایک لمیٹڈ کام ہے, اس اسی ٹب میں کپڑے گھمانے ہیں, سکھانے ہیں, جو بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو کپڑے باہر دے دے گی. وہ ایک بیپ کرے گی, آپ نہیں اٹھائیں گے, 10 دن بھی ہم اپنے مشین سے کپڑے نکالیں گے, وہ وہیں پڑ رہیں گے کپڑے. ایسا ہی ہے. وہ روبوٹ ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی. بٹ خدا نے آپ کو روبوٹس نہیں بنایا تھا. خدا نے آپ کو ایک پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن خدا وہ پرپس آپ کی زندگی میں زبردستی نہیں ڈالے گا. کیونکہ 2011 میں بورن اگین ہوئی, 2020 میں نے خدا کی آواز کو سننا شروع کیا. 10 سال خدا نے مجھے ریمائنڈ تو کرایا, میریکلز بھی ہوئے, میں برکت میں بھی چلی, بڑے عمدہ قسم کی گواہیاں بھی ہیں میرے پاس, آئی اوپننگ. بٹ خدا نے مجھے تب تک اس جگہ پر کھڑا نہیں کیا جب تک میں نے کہا نہیں کہ میں نہیں بلکہ تو بڑھے, اور جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو.
آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اس نے نہیں کیا, خدا آپ کو فورس نہیں کرے گا, کیونکہ اگر خدا نے آپ کو فورس کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ انجسٹس کر دیا, بے انصافی کر دی, کیونکہ آدم کو تو اس نے مرضی دے دی تھی اور ہمیں اس نے کہہ دیا کہ اب وہ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو خدا ایسا نہیں کرتا ہے. اس کے بعد سنیے گا, تو اس نے کہا زندگی اور موت میں نے کس کو دی ہے؟ تمہارے سامنے رکھی ہے. لیکن اسٹوپڈ لوگوں کے لیے اس نے آنسر بھی دے دی ہے. اگر آپ کی ٹیچر آپ سے سوال کرتے ہیں اور اس کا آنسر بتا دے, یقیناً وہ آپ کو بیوقوف سمجھتی ہے, نالائق سمجھتی ہے, اس کو پتہ ہے آپ غلط آنسر دیں گے. ایسا ہی ہے. اگر میں کہتی ہوں 2+2 4 یا 8 اور میں ساتھ آپ کو بول دیتی ہوں, اس کا مطلب ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ رائٹ آنسر کو سلیکٹ کریں. ایسا ہی ہے. اور یہ میری آپ سے محبت ہوگی کہ میں آپ کو آنسر ریویل کر رہی ہوں. اسی طرح لیکن میں نہیں کرتی تھی. اٹس اوکے. تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ سے اتنی انف محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو رائٹ آنسر دے رہا ہے. خدا رائٹ بات بتا سکتا ہے, لیکن خدا آپ کو فورس نہیں کر سکتا. اور آج آپ اپنی زندگی کے جس بھی سیزن سے گزر رہے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے گزر رہے ہیں. خدا نے آپ کو اس سیزن میں نہیں رکھا ہے. لیکن اگر آپ خدا کی مرضی میں بھی ہیں تو آج آپ اس کو کلیئرفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں دوسرا پترس, اس کا 3 باب, اس کی 8 اور 9 آیت ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی جاؤں کہ ورس ہم کیوں پڑھیں گے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے. کیا آپ نے سنا ہے ایسا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, ہم اس کو حوصلہ دینے جا رہے ہیں, خدا کی مرضی تھی بہن, کوئی بات نہیں, چل کوئی بات, اس میں بھی خدا کو کوئی جلال ملا. تیری 206 ہڈیاں ٹوٹ گئی, خدا کو جلال ملے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایسے جملے سنے؟ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پتہ نہیں کون سے سالوں میں, اور اس کو لوگ آ کے یہ کہتے تھے چلو اس میں بھی خدا کو کوئی جلال ملے. اور میں ان کو بھی آنکھیں دکھاتی تھی اور اپنے بھائی کو بھی دکھاتی تھی. اور میں نے میرے بھائی کی زندگی میں میریکل یہ ہے کہ میں اس ٹائم میں ایونجلسٹ نہیں تھی, ٹیچر نہیں تھی, بٹ اس کا ہاتھ غلط جڑ چکا تھا. ڈاکٹرز نے غلط سرجری کر دی تھی, اس کا ہاتھ ٹیڑھا جڑ چکا تھا. اور میں نے اس کے اوپر روز دعا کرنا شروع کی کہ ہاتھ سیدھا ہو چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا ہاتھ بالکل سیدھا ہو گیا. سرجری بالکل غلط تھی. تو میں نے کہا میں اس ٹائم بھی میریکلز میں چل رہی تھی, بٹ میریکلز میں چلنا انٹرسٹنگ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زندگی ہوا سے بہہ رہی ہے اور اچھل رہی ہے. آپ دو دلا شخص ہیں اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. اور خدا ایسی زندگی پسند نہیں کرتا, کیونکہ نیم گرم شخص کو خدا اپنے منہ سے اگل دے گا. آپ اپنی سلویشن کو لوز نہیں کریں گے. لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ, سن لیجئے, کوئی بھی انسان اپنی نجات کو کبھی نہیں کھو سکتا. اور اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو عبرانیوں اس کا 9 باب, اس کی 10 باب, اس کے 11 باب, اس کی 12 باب, گلاطیوں کا خط, افسیوں کا خط, کلسیوں کا خط, فلپیوں کا خط جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات میں کر رہی ہوں وہ میں ٹھیک کر رہی ہوں, میں بائبل کی بات کر رہی ہوں. آپ اپنی نجات کبھی نہیں کھو سکتے ہیں, بٹ آپ اس زمین پہ جو ریوارڈز ملنے ہیں وہ کھو دیں گے. کیونکہ اس نے کہا اس زمین پہ کتنا ملے گا؟ 100 گنا. اس زمین پہ کتنا ملے گا؟ 100 گنا. اور کیا آپ 100 گنا لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابراہیم کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا چاندی بکثرت ہو؟ غربت خدا کی طرف سے, کتنے کہتے ہیں غربت خدا کی طرف سے؟ خدا کو جلال مل رہا ہے, ہم 3 دن بھوکے رہے, ہاللیلویہ. کتنے لوگ کہتے ہیں غربت خدا کی طرف سے؟ غربت خدا کی طرف سے نہیں ہے. کسی فقیر کی زندگی سے آپ نے بولا واہ خدا تیری کیا شان نرالی ہے, یا فقیر کو دیکھا کہتے ہیں جا بھائی کام کر, محنت کر. ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی 9 سے 5 نوکریوں پہ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی فقیر کو دیکھ کے آپ خود ورشپ کرنا شروع کرتے ہیں. لوگ سمجھتے جو ہماری زندگی میں برے حالات چل رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے چل رہے ہیں, بٹ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تباہ ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے. وہ خدا خود لمیٹڈ ہے. اب میں خدا کی پاور کو لمیٹڈ نہیں کری, بٹ خدا کی پاور ان کی, وہ کہتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ایون یسوع مسیح بھی لمیٹڈ تھے, وہاں پر بہت سے معجزے نہ دکھا سکے جہاں پر فیتھ نہیں تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع مسیح بہت سے معجزے نہ دکھا سکے جہاں پر اعتقاد نہیں تھا, اور یسوع مسیح کام نہیں کر سکتے آپ کی زندگی میں اگر آپ ولنگ اور اوبیڈینٹ نہیں ہیں. تو پڑھیں جی 8 سے 9 آیت پڑھیں. دوسرا پترس اس کا 3 باب, اس کے 8 سے 9 آیت پڑھیں تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے جو میں باتیں کر رہی ہوں میں خدا کے کلام سے کر رہی ہوں. ہاں جی 3 باب 8 سے 9.
اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک نوبت پہنچے؟ توبہ تک نوبت پہنچے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی کے حالات خداوند کی طرف سے، تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. کیا خدا نہیں چاہتا جلدی جلدی چرچز بھر جائیں، لوگ بورن اگین ہو جائیں اور سارے مسیح ہو جائیں؟ مجھے بتائیں، چاہتا نہیں ہے؟ اور اگر خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہوتا تو کیا آج میں یہاں کھڑے ہو کے پریچ کر رہی ہوتی؟ اور نہیں، خدا نہیں کر سکتا یہ کام. اس نے منادی کے میتھڈ کو استعمال کیا کیونکہ خدا کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ میں پھر پڑھوں گی آپ لوگوں کے لیے. میں خود پڑھوں گی، ایک سیکنڈ. 8 اور 9 پہ لکھا ہے، اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. کیا بولا اس نے؟ اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ خدا چاہتا ہے آپ کو یہ ورس پتا چلے، اور وہ کیا ہے؟ کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسے دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اب یہ خدا کی ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ سفر کریں، آپ غلط پلانز کی طرف جائیں، آپ کی زندگی میں ریگریٹس ہوں، آپ کی زندگی میں غربت ہو، آپ کی زندگی میں پریشانی ہو، اور آپ کی زندگی میں بیماری ہو. کبھی بھی کسی بھی بیمار شخص نے خدا کے نام کو میں نہیں سمجھتی جلال دے سکتے ہیں. اور اگر بیماری جلال دیتی ہوتی تو خداوند یسوع مسیح بیماروں کو اچھا کرنے نہ آتے. ایسا ہی ہے، بیماری جلال نہیں دیتی، بیماری سے شفا پانا جلال دیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ کا چرچ کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، اور میں چرچ کو اس لیے ٹارگٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں ہر اس شخص کو ٹارگٹ کروں گی اگر وہ آپ کو گاسپل سے باہر لے کے جا رہا ہے. اور میں نے اگر آپ نے بینر دیکھا ہوگا، اگر آپ بروشر دیکھا ہوگا، مجھے کسی نے کال کی اور سب بولا، میرے بھائی نے کہا کہ میم سیرش نے اپنے نام کے پیچھے پاسٹر، ایونجلسٹ، ٹیچر نہیں لگایا. میں نے کہا اگر میں ٹیچر نہیں ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یسوع مسیح کی گواہی نہیں دے سکتی؟ کیا میں ایک بلیور نہیں؟ میرا بلیور ہونا میرے ٹیچر ہونے سے پہلے ایویڈنس رکھتا ہے. کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ میں ایک ایماندار ہوں اور میری زندگی میں خدا یسوع مسیح کام کر رہا ہے. میرے پاس ٹیچر کا ٹائٹل نہیں ہے، میں پاسٹر نہیں ہوں، میں ایونجلسٹ نہیں ہوں، میں یسوع مسیح کے ماننے والی ہوں. خدا یسوع مسیح مجھ میں رہتا ہے، جیسا وہ ہے ویسی میں ہوں اس زمین پر. مجھے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس میری گواہی انف ہے آپ کو امپریس کرنے کے لیے. کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میرا ٹائٹل کیوں آپ کو امپریس کر رہا ہے؟ ٹیچر سیرش کلیم. اینڈ واٹ اف میں سارا غلط کلام سنا دوں آپ کو ٹیچر کے ٹائٹل کے نیچے؟ پھر تو میں نے کوئی ٹائٹل یوز نہیں کیا. میں نے بروشر کو اس لیے سمپل رکھا بیکاز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ آئے ہیں تو یس آپ ڈفرینٹ تھاٹ کے ساتھ یہاں سے جائیں گے. سو وہ کہتا ہے کسی کی ہلاکت نہ ہو. تو آپ کیا کریں؟ آپ کی زندگی میں جتنا کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو خود ڈیسائیڈ کریں. وہ خدا ڈیسائیڈ نہیں کرا، لیکن خدا آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ آپ اس کے پلان کو فالو کریں. میں نے کیا بولا؟ خدا آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ آپ اس کے پلان کو فالو کریں. کیوں نہیں فورس کرے گا؟ کیونکہ خدا نے آپ کو روبوٹس نہیں بنایا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے. آپ کے پیرنٹس آپ کو فورس کر سکتے ہیں؟ ایک سرٹن ایج تک ہم بچے کو قابو رکھ سکتے ہیں. جیسے بچہ 10 سال کراس کیا نا، بچے کے ٹینٹرمز دیکھیں، یہ ادھر بال، ادھر بال، ادھر گئے، کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے بچہ، نو پرابلم. لیکن آپ کس بات کا فلانٹ کر رہے ہیں؟ یہ فلانٹ نہیں ہے. اگر میرے جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں نا، ہم آپ پہ ہنسیں گے بیکاز آپ بیوقوف ہیں اور آپ اپنی زندگی کو ہلاک کر رہے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ خدا نے آپ کے لیے کتنی بیٹر اور ونڈرفل لائف رکھی ہوئی ہے. لیکن خدا آپ کو فورس نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں. آپ فری ہیں کہ آپ جو مرضی چوز کریں، بٹ رائٹ چوائس کیا ہے؟ آپ فری ہیں کہ آپ جو مرضی چوز کریں، بٹ رائٹ چوائس کیا ہے؟ خدا کی آواز کو سننا. میں نے کیا بولا؟ آپ فری ہیں کہ آپ جو مرضی کریں، بٹ رائٹ چوائس کیا ہے؟ خدا کی آواز کو سننا. کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی، اور میں آپ کو ایک اور بات انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکے. کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ انسان ڈیزائنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکے. میرے ساتھ نکالے یرمیہ اس کا 10 باب اس کی 23 آیت، اور جلدی سے کلیسیا پڑھنا شروع کریں. یرمیہ اس کا 23 باب اس کا 10 باب اس کی 23 آیت. چلیں جی پڑھیں جی کلیسیا. کہتا ہے انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا.
کیا کہتا ہے؟ انسان اے خداون میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں. آپ کی لائف آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے کنٹرول میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی خود بخود آپ کو لے جاتی ہے یا آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے کدھر جانا ہے؟ اس کا اسٹیئرنگ ویل کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ کے کنٹرول میں. اسٹیئرنگ ویل کس کے کنٹرول میں؟ آپ کے کنٹرول میں. اور آپ ڈیسائیڈ کریں اس نے لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, پیچھے جانا ہے, آگے جانا ہے, کدھر جانا ہے. اسی طرح آپ کی لائف بھی ایک کار کی طرح ہے, اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. بٹ اگر آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پتہ ہوگی تو آپ رائٹ جگہ پر اینڈ کریں گے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے. آپ کا فیول بھی جائے گا, آپ کی انرجی بھی جائے گی اور آپ کی گاڑی بھی خراب ہو جائے گی, بیکاز آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے رہا. اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں بیکاز وہ خدا کے لیے سیریس نہیں ہو رہے, پلان کے لیے سیریس نہیں ہو رہے, اور وہ اپنا ٹائم ویسٹ کری جا رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے یہ انسان کی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ڈیسائیڈ کر سکے. یہ انسان کے پاس کیا ہے؟ ابیلٹی نہیں ہے. آپ کبھی بھی ڈیزائن نہیں تھے کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. امثال کی کتاب اس کے 14 باب کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں بٹ ان کی انتہا میں کیا ہے؟ موت ہے. جو راستہ ابھی آپ کو اسٹریٹ لگ رہا ہے, اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو میں آج آپ کے پاس نہ ہوتی. ایسے ہی گزارے لائی کہ اسٹڈیز کرتی تھی, پر جب کرتی تھی تو بہت اچھی کرتی تھی, لیکن ہیپی نہیں تھی اس اسٹڈی لائف سے بھی. اور پھر مجھے اسٹڈی سے اتنی نفرت ہوگی, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اور پرپس پورا کرنا تھا, اس لیے کیونکہ میں نے خدا کی ویلیو کو بہت زیادہ جان لیا تھا. میں اسٹڈیز کے خلاف نہیں ہوں, میں چاہتی ہوں ہماری کرسچن عوام پڑھے, آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی. بٹ اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کون گروم کر سکتا ہے؟ آپ کی بائبل. کہتا ہے سکھاواں گا تینوں بکھاواں گا راہ. وہ آپ کو زیادہ سمارٹ بنا سکتا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. میری ڈگری نے مجھے 1% فائدہ نہیں دیا. میں جو بھی ہوں وہ صرف اس کی وجہ سے ہوں, اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. نہ میرے کوئی کانٹیکٹس ہیں, سنیے گا, نہ میرے کانٹیکٹس ہیں, نہ میں کانٹیکٹس چلاتی ہوں, کیونکہ مجھے بڑی انسلٹ لگتی ہے یار ہم کانٹیکٹس کے طور پہ کام کریں تو پھر خدا کا کانٹیکٹ کس دن کام آئے گا. آمین. سو میرا گریٹر کانٹیکٹ کون ہے؟ خدا ہے, اور وہ میرے لیے کام کرتا ہے. سو امثال کی کتاب کہتی ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. لیکن امثال اس کا 3 باب اس کی 5 آیت کہتی ہے کہ تو اپنے سارے دل سے مجھ پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. تجھے جس راہ پر جانا ہوگا میں تیری رہنمائی کروں گا. آپ نے جس بھی راہ پر جانا ہے کون آپ کو گائیڈ کرے گا؟ خدا آپ کو گائیڈ کرے گا. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم خدا کو ایز اے جی پی ایس یوز نہیں کریں. فار ایگزامپل میں نے یہاں آنا ہے, اب اگر 2 روٹ لگتے ہیں اور میں ایک غلط روٹ لے لیتی ہوں, فار ایگزامپل ایک روٹ بہت لمبا والا ہے اور ایک روٹ بہت شارٹیسٹ ہے, لیکن میں لمبا والا لے لیتی ہوں. ڈیسیجن میری یہی تھی کہ میں نے چھوٹا لینا ہے لیکن میں بہت لمبا لے لیتی ہوں, یا میں غلط سڑک پہ نکل جاتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے میرے فون پہ جی پی ایس ہوگا, وہ مجھے ری لوکیٹ کر دے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی سڑک نکال کے مجھے واپس بتا دے گا, بھلے مجھے 30 منٹ میں پہنچائے, 50 میں پہنچائے, 100 منٹ میں پہنچائے, بٹ وہ مجھے پہنچا دے گا, مجھے بتا دے گا اس ڈائریکشن سے تو وہاں پر آ سکتی ہے. اگر آپ اپنے جی پی ایس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ پاک روح پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بھی غلطیاں کر لی ہیں, کتنی بھی برے فیصلے کر لیے ہیں, خدا آپ کو ری کیلکولیٹ کر کے آپ کے اس ڈیسیجن میں لے کر آ سکتا ہے جو خداوند کی طرف سے ہے. خدا آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو لٹرلی ری ڈائریکٹ کر سکتا ہے. آپ فری ہیں کہ آپ اپنی لائف کو رن کریں, بٹ ڈے آف ججمنٹ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا کام پرکھا جائے گا. میں نے کیا بولا؟ کرنتھیوں کے خط میں میں ورسز نہیں کھلواؤں گی ٹائم کو دیکھتے ہوئے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا کام اگر سونے پہ ہوگا اور اگر چاندی پہ ہوگا وہ بھی پرکھا جائے گا جب آگ آئے گی, اور اگر بھوسے پہ ہوگا یا رتے پہ ہوگا تو وہ بھی پہچانا جائے گا. آپ اس زمین پر بلینئر بن جائیں, ملٹی ملینئر بن جائیں, آپ کی کمپنیز ہوں, آپ کے ایپس ہوں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر آپ کو اس زمین پر ایکسیپٹنس مل جائے, فیم مل جائے, پیسہ مل جائے. اب دیکھیں جب پیسے والے لوگوں کو کلام سنانا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. پیسے والے لوگوں کو کلام سنانا بہت مشکل ہے,
गरीबों को सुनाओ ना, गरीब मैं बोलूँगी ना मैंने चावलों की देख देनी है, आएंगे कि नहीं आएंगे? आई एम सॉरी, मैं गरीबों को इसलिए टारगेट करी क्योंकि मैं उनको उठाना चाहती हूँ, भाई गरीब नहीं रहना, क्योंकि जितना यीशु मेरा उतना यीशु तुम्हारा भी है, ऐसा ही है। तो वो मेरे बहन भाई हैं मसीह में, बट लफ्ज़ जो चोट दिल में लगाए वो बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके घर जाने के बाद 2 हफ्ते तक आपके कानों में गूंजे, समझ रहे हैं? और ये वर्ड इसलिए किसी को हकीर नहीं जान रही, ये अल्फाज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप याद रखें कि ये खुदा की मर्जी नहीं है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो गरीब शख्स क्या करेगा? गरीब शख्स आ जाएगा मीटिंग अटेंड करने। अमीर क्या करेगा? अमीर नहीं आएगा, और आप अमीर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। क्यों? उसके पास डॉक्टर के लिए भी पैसे हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए भी पैसे हैं, उसके बिल्स भी जा रहे हैं, उसका घर भी अपना है, उसका गाड़ी भी है, उसका ये सब कुछ भी ऐसा ही है। और आप देखता, आप किस भी पोजीशन पर हो, आप में से मैं किसी को बोलूँ ना यार फलाना शख्स अमीर है, इसको कलाम सुनाओ, आप हेजिटेट करेंगे। आप हेजिटेट करते हैं अमीरों के सामने बोलने में। और आप क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि अमीर शख्स के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मौजूद नहीं है, ऐसा ही है। तो आप उसे क्या कहेंगे? खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे लिए ये कर सकता है? वो कहेगा मेरे पास है गाड़ी। कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें घर दे सकता है? वो कहेगा है मेरे पास घर। क्या आप ये कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह तुझे हीलिंग दे सकता है? वो कहेगा अभी मैं अपना नए किडनीज दिलवा कर आ रहा हूँ। आप कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकता है? वो कहेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा है। बट क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसी ज़िंदगी की हद तक है या इटर्निटी की तक भी है? मैं बड़े अमीर, मुझसे ज़्यादा अमीर लोगों को मैं कलाम सुनाती हूँ, और मैं कभी कभी अपने बारे में मजाक करती हूँ कि बस इतना अमीर होना है जितना लोग मुझे समझते हैं। क्योंकि आपको मेरी बात समझ आइए, मैं अक्सर कहती हूँ मैंने इतना अमीर होना है जितना लोग मुझे समझते हैं, क्योंकि मैं अपने से बहुत ज़्यादा नेटवर्थ रखते हुए लोगों को कलाम सुना रही होती हूँ। जब वो मेरे पास आते ना तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ अपनी कॉलिंग में, अपनी असाइनमेंट में, अपने गॉड गिवन पर्पस में, कि वो मुझे 1% भी प्रेस नहीं कर सकते, और उल्टा वो मुझे सुनकर जाते हैं। और मैंने क्या बताया? खुदा आपका बेटर GPS है और खुदा आपको रीलोकेट कर सकता है। अगर हम पौलुस रसूल की एग्जांपल लें तो पौलुस रसूल अपनी ज़िंदगी में माँ के पेट से ही चुना हुआ है। वो गलतियों के ख़त उसके पहले बाब की 5 आयत में कहता है कि उसने मुझे माँ के पेट से ही अंजील सुनाने के लिए सेपरेट किया हुआ था। बट क्या वो अंजील सुना रहा था? सबको समझ आई मेरी बात? कहता है किया उसने मुझे सेपरेट कब से था? माँ के पेट से। बट वो माँ के पेट से अंजील सुना नहीं रहा। सिंसियर है बट सिंसियरली रॉन्ग है, जज्बा रखता है खुदा के लिए, बट गलत है क्योंकि किसी ने सही तालीम नहीं दी है। और सही तालीम क्या है? अंजील, फजल का कलाम, ईमान का कलाम, ये सही तालीम है। कि हमने लोगों को ये फोकस नहीं करना हमने यीशु के लिए क्या करना है। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आप हर इतवार ये सुनते होंगे आपने खुदा के साथ सीरियस होना है, सिंसियर होना है, डिसिप्लिन्ड होना है, खुदा के लिए ये करना है, खुदा के लिए वो करना है। और लोग क्या करें? लोग इस फियर में खुदा के पास जाते ही नहीं है। ऐसा ही है, कहते हैं खुदा हमारे लिए तो कुछ करता नहीं, हमारे बिल्स तो पे होते नहीं, हमारे ये तो देते नहीं, हमें अच्छी नौकरियाँ तो देता नहीं, तो अब हम उसके लिए ही करते जाए। ऐसा है कि नहीं है? और भाई मैं आपके सीज़न से गुजर कर आई हूँ, आप सब मुझसे छोटे हो सकते हैं, बट मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। और मैं ये बात जानती हूँ कि हम खुदा से भी एग्जॉस्ट होते हैं, हम खुदा से चिढ़ रहे होते हैं। और हम क्यों चिढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हम ये बात जान नहीं रहे हैं कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है और हमने उसको परसू करना है, उसको सीख करना है, उसको फाइंड करना है। सो पौलुस रसूल को चुना खुदा ने है, बट वो खुदा की मर्जी नहीं पूरी कर रहा। और जब वो खुदा की मर्जी पूरी करता है, अगर वो पहले से ही खुदा की मर्जी पूरी कर रहा था तो आप देख सकते हैं अगर उसने बाइबल के बहुत से लेटर्स लिखे हैं तो वो कितना और ज़्यादा काम कर सकता था। इसका मतलब है जब आप राइट विल में जाएंगे, राइट विल में जाने का मतलब ये नहीं कि जब आप 30+ के हो तो आप तब जाएं, जब आप सारा मज़ा चख चुके हो। टाइम बहुत शॉर्ट है। यिर्मयाह 1 में लिखा है कि खुदा कहता है यिर्मयाह को कि मैंने तुझे चुना है कि तू कौमों में जाके मेरा कलाम सुनाएगा आग की तरह। यिर्मयाह कह रहे नहीं खुदावंद, मैं तो अभी बच्चा हूँ। जैसे हमारी माएँ कहती हैं, हमारे वालिदैन कहते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है, इसको क्या चर्च की एक्टिविटी है। कुछ बच्चे आज सरमन नहीं सुनने आए क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बच्चा समझते हैं, उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं दी, जबकि उनके बच्चे सारे पुट्ठे काम कर रहे होंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, जिसके पास ये है ना उसे आप कोई भी पुट्ठा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस किस को समझ आइए? अगर आपके बच्चे का ये है ना तो वो बिल्कुल शरीफ नहीं है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो उसको इन कामों में आने से ना रोकें
उसको कोई उसे मोबाइल ले लें, ये अच्छा काम होगा, बजाय कि आप उसको सेमिनार पे आने से रोकें। तो कहता है, अब यिर्मयाह कहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ, खुदा कहता है ऐसे मत कह। और फिर खुदा यिर्मयाह को भी याद दिलाता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुना हुआ है। सो आप कब से खुदा की लिस्ट में हैं? जब आप माँ के पेट में थे, आपके दिन नहीं बने थे, अभी डिसाइड नहीं किया गया था कि आप बेटा पैदा होंगे या बेटी पैदा होंगे, तब से खुदा जानता था कि इस बेटी ने आके ज़मीन पे क्या करना है, इस बेटे ने आके ज़मीन पर क्या करना है। सो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इग्नोर करें? इवन साइप्रस, मुझे उर्दू में नाम नहीं आता, लेकिन बाइबल में यशायाह की किताब उसके 45 से 4 आयत में लिखा है साइप्रस के बारे में, कि वो भी कहता है, सास के बारे में कहता है कि उसके भी जो सारे अयाम थे वो कलाम में लिखे हुए थे, और खुदा ने आपका हर डे प्लान किया हुआ है। बट क्या आप हर डे खुदा की प्लानिंग से पूछ के चल रहे हैं, या आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? आपको सर्कमस्टांसेस लीड कर रहे हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप बड़े हों, और खुदा नहीं आपको, एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो बिल्कुल ये मत समझे कि आपका काम सिर्फ यहाँ पर आके वर्शिप करना है। वर्शिपर से पहले आप एक बिलीवर हैं, और आपका काम है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक गवाही सेट करें। अगर आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, ठीक है, आप शेफ हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपकी कॉलिंग है। कॉलिंग सबकी क्या है? खुदा के विल में चलना, खुदा के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना। खुदा कभी भी नहीं, खुदा ने मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा किया गया क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोले, 7 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों को पढ़ाती थी, बड़े स्टूडेंट्स को डील कर रही थी, तो भाई मुझे सब कुछ आता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले से डिसाइडेड था। और मेरे पास बचपन से मेरा विजन था कि मुझे एक स्कूल बनाना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सा स्कूल बनाना है। मैं विजन के साथ ड्राइव कर रही थी, बट मुझे ये नहीं पता था स्कूल कौन सा बनाना है। और मैं हमेशा कहती थी मैं एकेडमिक स्कूल बनाऊंगी जिसमें मैं साइंसेस रखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं स्विमिंग पूल रखूंगी, कैफेटेरिया रखूंगी, बच्चे एंजॉय क्या करेंगे, और हम पार्टीज क्या करेंगे, और हम ये क्या करेंगे। मुझे प्रिंसिपल बनने का शौक था, बट वो खुदा का प्लान नहीं था। खुदा का प्लान क्या था? मैं गॉस्पल टीचर बनूं। सो विजन था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। और क्लैरिटी कैसे ही? जब मुझे दिन और रात उसके कलाम का ध्यान रहने लगा। सो मूसा के पास भी प्लान था, और प्लान क्या था मूसा के पास? कि मूसा ने इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल के मुल्क कनान तक लेके जाना है, बट वो खुदा को अपनी मर्जी से डील करने की कोशिश करता है। वो खुदा की विल तो सुन लेता है, लेकिन उसको ब्लंडर कर देता है, और 10 साल के लिए वो खुदा के प्लान को लेट कर देता है। आपको पता है इस्राएल कौम ने 400 साल बाद वापस आना था, लेकिन वो 430 सालों बाद वापस आए। क्या आपको ये बात पता है? ये खुदा का प्लान नहीं था। और वो प्लान किसकी वजह से लेट हुआ? मूसा की वजह से, क्योंकि मूसा को जल्दबाजी पड़ी थी। उसने कहा ओ माय गॉड, मैं फिरौन के घर में रहता हूँ, उसकी बेटी ने मुझे पाला है, आई नो मैंने कैसे निकालना है, मैं एक एक करके मिस्रियों को कत्ल करूंगा। लेकिन क्या हुआ? एक ब्लंडर, डिजास्टर आया, भाग गया मिद्यान के शहर में और छुप गया। खुदा ने अगर आपको बता दिया आज कि आपकी क्या कॉलिंग है, तो खुदा उसके लिए आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा। सिर्फ खुदा की कॉलिंग जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ कैरेक्टर भी बिल्ड करवाना इंपॉर्टेंट है। किस किस को समझ आ रही है? अगर मेरा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ जाए लेकिन मेरे अंदर किरदार नहीं, मैं खुदा की इंसल्ट करा दूंगी। क्या पता मैं हरामकारी में पड़ जाऊं? ऐसा है कि नहीं है? पैसा आपके दिल के अंदेशों को रिवील कर देता है। आप तब तक शरीफ हैं जब तक आपके पास पैसा नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूँ। और फिर मैंने कहा कि खुदा के प्लान्स आपकी ज़िंदगी में बेटर है। फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी खुदा की बात इसलिए सुन रहे थे क्योंकि हम अपने करियर में बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम खुदा की बात कभी कभी इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख की नौकरी है, 2 लाख की नौकरी है, 3 लाख की नौकरी है, 4 लाख की नौकरी है। ऐसा ही है। हम खुदा की इसलिए भी नहीं सुन रहे थे क्योंकि हम यूएस में सेटल्ड हैं। हम खुदा की इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हम कैनेडियन सिटीजन्स हैं। हम खुदा की इसलिए नहीं सुन रहे बिकॉज अभी हमारे पास इतना कुछ है कि हमारा अच्छे से गुजारा हो सकता है। हम खुदा की इसलिए सुन रहे क्योंकि हमारा बेटा जो है वो बड़ा पॉप स्टार है और उसकी वजह से हमें काफ़ी फेम मिल रहा है। हम खुदा की इसलिए सुन रहे क्योंकि हमारे पास फेम है, मनी है, हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा ही है। और हम समझते हैं कि अगर हम खुदा को सुनने लग जाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ें छीन ली जाएंगी। ऐसा है कि नहीं है? क्या हम ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम सोचते हैं कि अगर हम खुदा की सुनने लग जाएंगे तो हमारी जिंदगी में से ये सारी चीजें हमसे ले ली जाएंगी। कैन यू इमेजिन? अब दुनिया की जिसने आपको ये सब चीज दिया है, आप उसको चैलेंज करें कि तू हमसे ये ले लेगा?
He has the best plans for you. उसके plans क्या हैं? Better than your plans. खुदा के plans, बोले खुदा के plans मेरी जिंदगी के लिए मेरे प्लान से ज्यादा बेटर हैं. फिर मैंने कहा कि अब आप कहेंगे यार मैम अगर खुदा मुझे इधर इस्तेमाल कर रहा है तो मैं कैमरा शाय हूँ, मेरा नहीं दिल चाहता मैं पब्लिक में आऊँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ. अच्छा, खुदा की क्वालिटी है. वो वर्स सुनी हुई है कि ज़बूर 34 की वर्स सुनी हुई है. क्या थी वर्स 4? ज़बूर 37 की वर्स 4 सुनी हुई है. वो कहता है तू खुदावंद में मसरूर है और वो तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा. किस किस ने सुनी हुई है? खुदावंद में मसरूर है और वो तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा. सुनी हुई है. अब हम क्या समझते हैं? हम क्या करते हैं? हम मुरादें लेके उसके पास जाते हैं, ऐसा ही है, और हम मुरादों के साथ उसमें मसरूर रहना शुरू करते हैं. सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है सेमिनार का. आपने मुरादे रखी हुए, अब भाई सैरिश कलीम ने आज ये करना है. कभी कभी बात में किसी स्टूडेंट से कर रही थी, इससे कर रही थी, अक्सर बात हो रही थी, इससे कर रही होती हूँ, किसी से बात करती हूँ, मुझसे कहते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है. मैं कहती हूँ प्लान शान कोई नहीं है. ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कंसर्न्ड नहीं हूँ, बट मैं वरिड नहीं हूँ, क्योंकि कंसर्न्ड होने में और वरिड होने में फ़र्क है. समझ रहे हो? कंसर्न्ड होने में और वरिड होने में फ़र्क है. लेकिन मैं एंड नहीं करना चाहती खुदा के प्लान से बाहर जाने में, क्योंकि उसमें पेन बड़ी है, तकलीफ बड़ी है. जब आपको खुदा का टेस्ट लग जाए तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपका जॉय और पीस सारा चला जाएगा अगर आप खुदा की विल से बाहर हैं. मैंने कहा आपका सुकून, इत्मीनान और हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस बहुत टेम्परेरी वर्ड. आपका जॉय की उर्दू क्या है? जॉय की खुशी, रूह का फल खुशी. आपकी खुशी चली जाएगी. क्यों? आप अपनी जिंदगी में, आप में से अगर कोई अभी इस वक्त डिससेटिस्फाइड है ना, तो वो इसलिए डिससेटिस्फाइड हो सकता है या तो वो प्लान के अंदर नहीं है, या तो वो प्लान के अंदर है लेकिन उसको पता, वो प्लान को खुद से पूरा करने की कोशिश कर रहा है. किस किस को बात समझाई? या तो आप प्लान के अंदर नहीं है तभी आप ना खुश हैं, या आप प्लान के अंदर है लेकिन आप प्लान को अपनी ताकत से, अपनी जुर्रत से, अपनी हिम्मत से, अपने पैसे से पूरे करने की कोशिश करें और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं. डू यू थिंक खुदा आपको इतने छोटे छोटे प्लान देगा कि वो आपकी सैलरी से पूरे हो सके? किस किस को मेरी बात समझाइए? डू यू थिंक खुदा आपको वो प्लान्स देगा जो आपकी सैलरी से पूरे हो सकते हैं? और भाई क्रिएटर है, उसने सितारे बनाए तो इतने बना दिए कोई गिन नहीं सकता, इनन्यूमरेबल. ठीक है जी, लोग इतने ज्यादा हैं, वो मल्टीप्लायर है. खुदा की सीवी में लिखा जाता है मल्टीप्लायर. क्रिएटर तो है लेकिन मल्टीप्लाई भी करता है. तो जब खुदा आपको कोई काम करने को कहेगा, डेफिनेटली वो आपकी हिम्मत से बढ़कर होगा, आपकी सोच से बढ़ के होगा. और पहले टाइम में आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे. जब खुदा ने मुझे YouTube का कहा कि स्टूडियो बनाओ, आई वॉज नॉट गोइंग विद दैट प्लान. और खुदा ने मुझे पिछले साल भी कहा था, मैंने खुदा की नहीं सुनी. मैंने वो कहा ना कि मैं थोड़ा लेट सुनती हूँ, लेकिन सुनती हूँ. लेट इसलिए सुनती हूँ कि मुझे होता है कि यार कहीं गलत स्टेप ना कर ले. कभी कभी होता है ना, आपने पुराने इतने गलत काम किए होते हैं, गलत स्टेप लिए होते हैं, आप डरते हैं अगला स्टेप लेते में. होता है कि नहीं होता? आपके दिल में फियर बढ़ जाता है. बट इट्स ओके, अगर आप फेल भी हो गए, 10 कदम आगे चले गए, आई एम विद यू. समझ आ रही है? अगर आप खुदा के प्लान में फेल भी हो गए, नो प्रॉब्लम, खुदा आपको दोबारा खड़ा करेगा, खुदा आपको दोबारा काम सिखा देगा. समझ रहे हैं? अब आगे सुने. तो ये जो वर्स है कि तो खुदा में मसरूर है और तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, तो लोग क्या करते हैं? खुदा, लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और वो खुदा के पास जाते हैं और वो कहते हैं आई एम फास्टिंग, मैं कलाम पढ़ रही हूँ. मैं लोगों से पूछती हूँ, अच्छा जी खुदा की मर्जी पूछना शुरू किए, वो प्लान अपना ही है, टस से मस्त नहीं होते. प्लान ढीठ इतने हैं, प्लान अपना ही है, मुरादें भी अपनी है, इरादे भी अपने हैं, जज्बात भी अपने हैं. सिर्फ उस जज्बात को, वादों को और इरादों को मुझे कह रहे हैं कि दुआ कर दें. मैं नहीं करती. बाकी लोग कर देते होंगे चर्च में, पर मैं नहीं करती. और मैं इसलिए नहीं करती, मैं कहती हूँ देखिए मैं आपके इस प्लान पे इसलिए दुआ नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये दुआ कर सकती हूँ कि खुदा पर अपनी नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी जाहिर करे. बट मैं ये दुआ नहीं करूँगी. हाँ, अगर कोई मेरे पास शिफा के लिए आता है, मैं कहती हूँ वो बंदे को शिफा पे यकीन नहीं होगा जितना मुझे होता है. वो कह रहा होगा नहीं 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 नहीं, इसमें कोई खुदा की मर्जी है. मैं बंदे को सही डस्टिंग शस्टिंग करके भेजती हूँ, क्योंकि खुदा के किरदार को ख़राब नहीं करना है. जो काम खुदा ने नहीं किया उसका इल्ज़ाम खुदा पर नहीं देना है. समझ रहे? अब आपने क्या करना है?
अब उसने कहा तुमने वर्स है इंग्लिश में, अगर हम पढ़ें आपको घर जाके पढ़ लीजिएगा. वर्स कहती है कि तुमने लिविंग सैक्रिफाइस बनना है. तुमने क्या बनना है? लिविंग सैक्रिफाइस. एक बकरी ने मरना है, एक जानवर सैक्रिफाइस है, तो उसको क्या है? उसको एक रात पहले आपने क्या खाने को दिया, ऐसे ही है. उसकी चॉइस थी, आपने उसको इस्लामाबाद में ज़बह करना है, पाकिस्तान में ज़बह करना है, कहाँ ज़बह करना है, उससे ज़बह होना है. ऐसा ही है. खुदा चाहता है हम अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर आ जाएं जहाँ पर हम लिविंग सैक्रिफाइस बन जाएं. और हमारे जब हम खुदा के पास आए तो हमारी कोई चॉइसेस ना हो. जब हम खुदा के पास आए तो क्या हमारे पास कोई चॉइसेस होनी चाहिए? खुदा के पास आपने कोई चॉइसेस लेकर नहीं आना है. जीरो चॉइसेस साथ, जीरो इरादों के साथ, जीरो मुरादों के साथ. मुरादें, यस, डिजायर्स का जीरो. और क्या होगा? वो कहता है खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा. अब जब आप लिविंग सैक्रिफाइस बन गए तो आप दूसरा स्टेप लेंगे, आप दुनिया का हमशक्ल बनना बंद करेंगे. लेकिन वो मैंने पहले ही वादा किया है कि मेरी नेक्स्ट सेमिनार का जो टाइटल अगले महीने का वो ये है कि कैसे हम दुनिया का हमशक्ल बनना बंद कर सकते हैं. मेरे पास एक सवाल आया था, एक बेटे ने पूछा था, मैंने कहा था वादा रहा मेरा तुझसे कि अगला सेमिनार हमारा इस टॉपिक पे होगा कि दुनिया का हमशक्ल बनना कैसे बंद कर सकते हैं. दुनिया में रह के दुनिया का हमशक्ल बनना हम कैसे बंद कर सकते हैं. समझ आ रही है? अब आप क्या करेंगे? आप लिविंग सैक्रिफाइस बने और फिर आप दुनिया का हमशक्ल बनना बंद कर गए. और फिर क्या हुआ कि आपने अपना माइंड को रीन्यू किया. ये 3 स्टेप हैं. आप खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को नहीं जान सकते अगर आप ये 3 स्टेप्स नहीं करें. किस किस को मेरी बात समझाइए? थम्स अप नहीं करना, रेज योर हैंड्स. आप का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लिविंग सैक्रिफाइस. मुराद नहीं. अब ये वर्ड्स गलत इस्तेमाल होती है कलीसियाओं में. मुराद आपने जीरो रखनी, अपनी खुदा के पास आना है और लिविंग सैक्रिफाइस बन करना है. खुदावंद मेरी कोई चॉइस नहीं है. और बहुत पेनफुल होगा बिकॉज आपको आपकी चॉइस बहुत परफेक्ट लगती है. मैंने क्या बोला? आपको आपकी चॉइस बहुत परफेक्ट लगती है. जीरो हो जाए और उसके बाद क्या करें? दुनिया का हमशक्ल बना. अब दुनिया आपको कह रही, आपकी मदर कहेंगी, आप देखना जैसे ही आप खुदा की बात सुनना शुरू करेंगे आपके पेरेंट्स की आवाज ऊंची हो जाएगी. वो आपको बोलना शुरू कर देंगे, वो आपको फिक्र दिलाएंगे कि आपका करियर तबाह हो रहा है. और शैतान करीबी लोगों से बात करता है, क्योंकि अगर मुझे कोई इंस्टाग्राम पे लिखे सैरिश तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, मैं मैसेज खोलूंगी. बताएं मुझे और कौन हो आप? मैं शायद मैसेज भी ना खोलूं डेज तक, डिलीट कर दूं, पागल समझ के ब्लॉक कर दूं, रिपोर्ट कर दूं. ऐसा ही है. बट अगर मेरी वालदा मेरे बारे में कुछ कह रही है तो मैं सुनूंगी, क्योंकि वो क्या है? क्लोजेस्ट है ना, मुझे पाला है, उनको मेरी फिक्र है. जब वो बार बार बोलेंगी तो मेरे इरादे तब्दील होंगे और मुझे ऐसा लगेगा मुझे हार्ड वर्क में जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है. और यहाँ आप फिसल जाएंगे. तो आपने खुदा के पास लिविंग सैक्रिफाइस, खुदा आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपसे आप में इंटरेस्टेड है. इवन जब आपके पेरेंट्स से इरादा भी नहीं किया था तब भी खुदा ने आपको बिल्ड किया. आमीन. अब तो प्लान्ड बर्ड्स आ गई ना, लेकिन कुछ अनप्लान्ड बर्ड्स भी हो रही हैं. तो क्या उन बच्चों के लिए खुदा का विजन नहीं है? तो हर शख्स की जिंदगी में एक प्लान है, एक परफेक्ट प्लान है. बट क्या आप उस परफेक्ट प्लान को फॉलो कर रहे हैं? या आपने लिविंग सैक्रिफाइस बनना है. लिविंग सैक्रिफाइस का मतलब है कि अपनी मुरादें छोड़नी है. फिर वो कहता है खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा. जब आप खुदा में मसरूर रहना शुरू करेंगे जीरो चॉइसेस के साथ, तो खुदावंद आपकी चॉइसेस चेंज करना शुरू कर देगा. मेरी बात समझ आई? फिर खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद आपकी चॉइसेस को चेंज करना शुरू कर देगा. और जब खुदावंद आपकी चॉइसेस को चेंज करेगा तो खुदावंद उन चॉइसेस के लिए आपके दिल में मोहब्बत डाल देगा. किस किस को बात समझाइए? डोंट वरी. अगर देखें एक बात सुने, अगर आज मुझे खुदा कहे कि तूने जाके किसी गांव में कलाम सुनाना है, अब जाहिर बात है मैंने तो कभी जिंदगी में गाँव नहीं देखा, तो मेरे जैसे बंदे के लिए गाँव जाना मुश्किल है. ऑफ कोर्स मुश्किल है. बट फिर खुदा मेरे लिए दिल में उन लोगों के लिए डिजायर भी पैदा कर देगा, हार्ट भी पैदा कर देगा. ऐसी बात नहीं है. आपका ये नहीं कि आप रोज सुबह खुदा की मर्जी के बगैर चल रहे हैं. अगर आपको अपनी नौकरी पे जाना बुरा लग रहा है, रूटीन, आपको पता है रूटीन लाइफ क्या है? आप ट्रेडमिल पे हैं. जब आप ट्रेडमिल पे, कैन वी सी द पिक्चर ऑफ ट्रेडमिल? आप लोगों ने जिम में देखा ट्रेडमिल? क्या होता है उसमें? मैं कहती हूँ मैंने सदर जाना, मैं ट्रेडमिल पे चढ़ी, चल तो रही हूँ ना, मैं सदर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि वो कहीं भी आपको लेके नहीं जा रहा. ऐसा ही है आपकी रूटीन लाइफ ऐसी है. देखते हैं ये अभी होती है, मशीन होती है, ठीक है जी. अभी मशीन देख रहे हैं आप,
یہ لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں بیکاز اگر وہ آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, ان کے پاس واکنگ پلیس نہیں ہے, تو وہ واک کر رہے ہیں یا رن کر رہے ہیں, اس پہ رننگ بھی پوری ہو رہی ہے, جاگنگ بھی ہو رہی ہے, اور اس پہ واکنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو موو کر رہی ہے. بٹ کیا آپ کو یہ کہیں لے کے جا رہی ہے؟ آپ کی روٹین لائف, آپ کی 9 to 5 کی جاب ایسی ہے, کیا یہ ٹریڈ مل آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہے؟ آپ کی 9 to 5 کی نوکری آپ کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہے, اور آپ فوکسڈ ہیں, اور آپ پے چیک ٹو پے چیک لیو کر رہے ہیں, اور آپ سلیو بنے ہوئے ہیں انسان کے پلان کے, آپ قیدی بنے ہوئے ہیں انسان کے پلان کے, جبکہ خدا نے آپ کے لیے بگر پلان رکھا ہوا ہے. میں نے پھر کہا تھا کہ بگر پلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ارتھ شیٹرنگ کالنگ ہے, آپ نے ہلا دینی ہے زمین جب آپ نے اٹھنا ہے. اگر میرے سامنے لڑکا نہیں ہے, یہ یونس نہیں ہے, تو آف کورس مجھے کون ریکارڈ کرے گا, مجھے اس کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے, اگر یہ بھائی نہیں ہوں گے تو مجھے کون ریکارڈ کرے گا, ساؤنڈ کو کون دیکھے گا؟ اگر پیچھے ثنا نہیں ہوگی تو وہاں سے ڈسپلن کا مسئلہ خراب ہو جائے گا, میں پرابلم میں آؤں گی, کوئی بدتمیزی ہو سکتی ہے کراؤڈ میں. ہر بندہ کام کر رہا ہے, شاید آپ کی کالنگ وہ نہیں جو میں کر رہی ہوں, بٹ آپ کی کالنگ ہے, اور کیا آپ اس میں اپنا بیسٹ پٹ کر رہے ہیں, اور کیا آپ خدا سے پوچھ رہے ہیں؟ لیونگ سیکریفائس بنے, آپ نے اپنی مرادیں چھوڑی, اور ٹریڈ مل سے اترنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ ٹریڈ مل سے اتریں گے تب آپ ریلائز کریں گے کہ آپ کہیں بھی نہیں جا رہے تھے, آپ کہیں بھی نہیں جا رہے تھے. آپ کی سیلری نے آپ کو سلیو بنا دیا ہے. سیلری بری نہیں ہے, وہ تب تک امپورٹنٹ ہے جب تک آپ نے سیٹ سو کرنا ہے. کس کس کو سمجھ آئیے؟ سچ کہہ رہی ہوں, سیلری ہونا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سیٹ بھی سو کرنا ہے, اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی, نو پرابلم. بٹ کیا اس جاب کے بعد آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں؟ اور جب آپ زیرو مرادوں کے ساتھ جائیں گے تو خدا آپ کے دل میں اپنی ڈیزائر پیدا کرے گا, اور جب خدا آپ کے دل میں ڈیزائر پیدا کرے گا تو پھر خدا اس ڈیزائر کے لیے آپ کے دل میں محبت بھی پیدا کر دے گا. اگر خدا آپ کو افریقہ میں استعمال کرتا ہے, نہیں تھینک یو, اگر خدا آپ کو افریقہ میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو خدا پھر افریقہ کے لیے, آپ کے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں محبت بھی ڈالے گا, کیونکہ خدا نے آپ کو جہاں یوز کرنا ہے خدا وہاں کے لیے آپ کے دل میں ڈیزائر پیدا کرے گا. اب سنیں میرے ساتھ, ایک نکالیں ورس نکالیں, 35 سام 35 ورس 27, زبور 35 اس کی 27 آیت. جو میرے سچے معاملات کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں, وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو, جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے. خدا کی, میں رپیٹ کروں گی, میں پڑھوں گی, جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں, وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو, جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے. اس کی خوشنودی اپنے بندے کی کس میں ہے؟ اقبال مندی میں. اقبال مندی کا انگلش ورڈ کیا ہے جی؟ اور اس کو اگر ہم اور ٹرانسلیشن ہو رہے تو اس کی خوشنودی اپنے بندے کے سکسیس میں ہے, اس کی خوشنودی اپنے بندے کی پراسپیرٹی میں ہے. تو آپ جو بن کے بیٹھے ہوئے نا کہ بھائی جو بھی ہو رہا ہے زندگی میں, جو بھی ہو رہا ہے, میں نے بہت سارے غریب لوگ جو ہمبل ہوتے ہیں, ہاں 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 فیک ہمبل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, غریب لوگ فیک ہمبل ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فیک ہیوملٹی ہے لوگوں کے اندر, یہ فیک پن چھوڑ دیں آپ. اور فیک ہیوملٹی یہ ہے کہ آپ کے حالات اتنے برے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خدا ان کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسے حالات میں رکھا ہے. ہاں کلام میں سے کہتا ہے ہم نے ہر حالات میں شکر کرنا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان حالات کا شکر اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ حالات خدا نے دیے ہیں. کس کس کو سمجھ آئیے؟ میں نے کہا ہم نے ہر حالات کا شکر کرنا ہے, بٹ اس لیے نہیں کرنا کہ خدا نے وہ ہمیں حالات دیا. ہم نے یہ شکر کرنا ہے کہ ہم اس سے بھی برے حالات میں ہو سکتے تھے اور خدا نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے, اور ہم نے بہتر حالات کی طرف موو کرنا ہے, کیونکہ جب وہ آپ کے دل میں ڈیزائر ڈالے گا پھر وہ آپ کا ٹیسٹ چینج کرے گا, اور ٹیسٹ چینج کرنے کے بعد وہ آپ کو اس جگہ پر پلیس کرے گا, پھر وہ آپ کو اسپیشل گفٹس دے گا, پھر وہ آپ کے لیے لوگ کھڑے کرے گا, پھر وہ آپ کو اسمارٹ بنائے گا, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ میں نے تجھ سے صرف کالنگ پوری نہیں کرنی بلکہ میں تجھے بھی سکسیس دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کہیں فار ایگزامپل ایک شخص ہے بادشاہ کے گھر پہ کام کرتا ہے, لیکن آپ رات کو اس کو لان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بادشاہ کے محل کے گارڈن ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ رات کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک درخت میں بیٹھا ہوا ہے, پنکھا چل رہا ہے اور وہ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, اور وہ اگر آپ کو کہے او بھائی بادشاہ میری بڑی عزت کرتا ہے, آپ مانیں گے؟ وہ گرمی میں بیٹھا ہے, وہ مشکلوں سے وہ جو بھی روٹی دال روٹی کھا رہا ہے بادشاہ کے گھر میں, لیکن بڑی تکلیف سے زندگی گزار رہا ہے, لیکن ساتھ وہ کلیم آپ کو کرتا ہے کہ بادشاہ اور میری بڑی اچھی فیلوشپ ہے. کیسا لگے گا آپ کو؟ جھوٹا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟
जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। मैंने कहा एक गरीब शख्स है, वो बादशाह के महल के अंदर ही है, बट वो रहता रोटी खा रहा है, गुर्बत में बैठा हुआ है और बहुत गंदी हालत में है, और वो आपको आता है, मैं उसके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाय मेरा एक काम है बादशाह से करवाना है, और वो कहे ओ मेरी बादशाह इतनी सुनता है, मैं यकीन करूंगी? क्यों? जी जल्दी जल्दी जवाब दें। क्योंकि उसका जो स्टेटस है, या स्टेटस कहते हैं, स्टेटस कहते हैं, व्हाटएवर, कि उसके स्टेटस के मुताबिक वो बादशाह की फेलोशिप में नहीं है, क्योंकि उसका स्टेटस बता रहा है कि वो गरीब है, नकम्मा, बादशाह उसको मुंह भी नहीं लगाता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर एक बंदा बादशाह की मेज से खा रहा है और उसकी भी अपनी सिक्योरिटी है, और मैं उससे बोलती हूँ तो मैं उसका यकीन करूंगी कि नहीं करूंगी? मैं करूंगी, क्योंकि उसकी बादशाह की प्रॉस्पेरिटी जब मैं उसकी ज़िंदगी में देखूंगी तो मैं आऊँगी यकीनन इसका बादशाह के साथ रिलेशनशिप है। और तभी मैं आपको कह रही हूँ, ओ बिलीवर्स, जब आपके अंदर मसीह यीशु वाले काम नजर नहीं आते तो कोई आपको कैसे पहचानेगा कि आप बिलीवर हैं? समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा लोग समझते हैं कि अगर हम खुदा के साथ अपनी लाइफ कमिट कर देंगे तो हमारी लाइफ बोरिंग होगी, बट मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग नहीं है। खुदा क्या करेगा? खुदा आपका इंटरेस्ट पैदा करेगा। और लोग समझते हैं कि खुदा के साथ लाइफ बोरिंग है। नो, खुदा के साथ लाइफ बोरिंग नहीं है। आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, आपके पास विजन होगा, आपके पास कॉल होगा, आपके पास पावर होगी, आप फरिश्तों को भेज के अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। हालेलुया। पावर में मूव करते हैं। पावर में मैं मूव कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन में मूव कर रही हूँ। खुदा की ज़िंदगी में फ़न है, खुदा की ज़िंदगी में गोल्स हैं, खुदा की ज़िंदगी में मिशन है, खुदा की ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, खुदा की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग भी है। आमीन। खुदा की ज़िंदगी में क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग। और मैंने कहा दिया आपकी रूटीन लाइफ एक ट्रेडमिल की तरह है। और मैंने क्या कहा था कि खुदा के पास आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है? डिटेल्ड और स्पेसिफिक प्लान। खुदा के पास आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है? डिटेल्ड, बोले मेरे पीछे, एंड स्पेसिफिक प्लान्स। इसका मतलब है मैंने मेरे माँ के पेट से ही उसके पास मेरे सारे दिन लिखे हुए थे। आमीन। माँ के पेट से ही उसके पास मेरे सारे प्लान्स क्या थे? लिखे हुए थे। खुदा ने आपके प्लान्स, आपके डेज लिखे हुए हैं। क्या आप रोजाना खुदा से पूछ के अपना डे स्टार्ट करते हैं? तो खुदा क्या करेगा? आपको कॉलिंग में आपकी डिजायर पैदा करेगा। इन कामों से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी अच्छी शक्ल पे क्यों फ्लॉन्ट कर रहे हैं? करने वाले काम करें। और वो क्या है? आप खुदा की गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल को जानना शुरू करें। और उसके बाद क्या होगा? उस विल में क्या होगा? जॉय एंड पीस होगा। जो आपका स्टेटस भी आपको पीस। आप स्टेटस क्यों लगाते हैं? नो व्हाट? अच्छा आप लगाते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, आप लगा सकते हैं। नहीं मैं किसी को कह रही हूँ। खुदा की प्राइमरी विल आपकी जिंदगी के लिए क्या है? कि आप लिविंग सैक्रिफाइस बने। खुदा की प्राइमरी विल आपकी जिंदगी के लिए क्या है? कि आप क्या बने? लिविंग सैक्रिफाइस। और आपने खुदा के पास, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये वाली वर्ड्स पूरी हो कि वो तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा, तो आपको क्या जाना है? उसके पास मुरादें लेके जानी है, वो उन मुरादों को पूरा करेगा, या आपने उसके पास मुरादों के बगैर जाना है और जो मुरादें वो आपके दिल में डालेगा फिर वो पूरी करेगा। ऑप्शन बी शॉर्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी यानी कि आपने मुरादों के बगैर जाना है, फिर वो मुरादें जो डालेगा वो मुरादें वो पूरी करेगा। आपकी मुरादें नहीं, जो मुरादें वो आपके दिल में डालेगा। सो फिर आप क्या करेंगे? फिर खुदा आपका बिगर इन्फ्लुएंस करेगा और करेक्टर आपका बिल्ड करेगा। और करेक्टर सिर्फ आपका तब बिल्ड हो सकता है मिनिस्ट्री में या खुदा के किंगडम में, जब आप लिविंग सैक्रिफाइस हैं। किस किस को समझ आइए? करेक्टर आपका कब बिल्ड हो सकता है मिनिस्ट्री में? जब आप लिविंग सैक्रिफाइस हैं। अगर आप लिविंग सैक्रिफाइस नहीं है तो आपका करेक्टर बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि दिल हीला पास है। मैं अपने दिल का बिल्कुल तबार नहीं करती। एक चीज़ है जिसका मैं, जो एक चीज़ जो मेरी है मैं उसका बिल्कुल तबार नहीं करती। वो क्या है? मेरा दिल। क्योंकि दिल क्या है? हीलाबाज है। और दिल आपको कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। तो आप क्या करें? आप मनी को, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की किस कॉलिंग में? आप फेम को ढूंढ रहे हैं, मनी को ढूंढ रहे हैं, एक्सेप्टेंस को ढूंढ रहे हैं लोगों की। आपको पता है किंगडम में आना, इस लाइफ को एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं था, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। अभी मेरी फैमिली मुझे बोलेगी हाँ हमने तो कभी कभी मना किया था। आप बोलती मेरी अम्मी यही है, आपस की बात है, लेकिन उस टाइम नहीं वो एक्सेप्ट करती थी। लेकिन ये चॉइस थी। ताने शाने सुने हमने, लेकिन नो प्रॉब्लम। जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाते हैं फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही है, अच्छे काम के लिए पैशनेट हो,
अच्छे काम के लिए ज़िद्दी बने, खुदा की विल के लिए ज़िद्दी बने, ना कि फजूल कामों के लिए, क्योंकि आप तबाह हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आप क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। और कोई तबाह होना चाहता है, और मैं बड़ी रिलीजियस फैरिसी भी थी। एक मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्रिश्चियन लाइफ ऐसी ही है लोगों की। ऐसा है कि नहीं है? आप चर्च में देखें ना, मसीह ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ों में दुआ कर रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा आप फेमस ना भी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो आप जिधर भी मौजूद होंगे आप इन्फ्लुएंस के साथ मौजूद होंगे। आपकी ज़िंदगी किसी को बेनिफिट दे रही होगी, वरना आपकी ज़िंदगी क्या है? यूजलेस है। और मैंने हमारे जो मेजर टाइटल था वो ये था, क्विट बीइंग गॉड, फॉलो हिज परफेक्ट प्लान। और अगर आप अपनी मर्जी में चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के खुदा बने हुए हैं। किस किस को समझ आई? अगर आप समझ नहीं, हम कहाँ से खुदा बन गए? खुदा बनने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी कोई वर्शिप करेगा। आप किसी के खुदा नहीं, लेकिन आप अपने खुदा बने हुए हैं, बिकॉज आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से लीड कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? क्विट बीइंग गॉड। अपनी जिंदगी का खुदा बनना छोड़ें और उसके परफेक्ट प्लान को फॉलो करना शुरू करें। और उसका परफेक्ट प्लान कैसा आएगा? खुद ब खुद, ऑटोमेटिक, बाय फोर्स नहीं। वो कहता है फर्स्ट सीक हिज किंगडम। क्या कहते हैं? पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? जब आप उसका किंगडम सीख करना शुरू करेंगे तो खुद आपका, मैंने कहा मिनिस्ट्री में कैरेक्टर की ज़रूरत है। अगर बच्चों में कैरेक्टर नहीं है, अगर स्टूडेंट्स में कैरेक्टर नहीं है, तो मिनिस्ट्री खराब हो जाएगी, मिनिस्ट्री में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि हम किसी और मिशन के बजाय हम किसी और मिशन पे निकल जाएंगे। और मैंने आपको डेविड की एग्जांपल दी थी, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स पहले ही बोल दिए हैं। सो जो आपका ग्रोथ प्रोसेस है, आपका ग्रोथ प्रोसेस में खुद आपको ट्रेन करेगा। हेस्टी मत हो खुदा की कॉलिंग को पूरा करने के लिए। सबका टाइम है, खुदा टाइम से आपकी कॉलिंग आपकी ज़िंदगी में पूरी करेगा। मैं लास्ट पॉइंट आपके जहन में डालना चाहती हूँ, अगर आप खुदा से डिसीजन नहीं ले रहे आज खुदा की सुनने की, और आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो आप वापस पुराने कामों में पड़ जाएंगे। समझ आ रही है? आप जिंदगी को जिन कामों को छोड़ के आए थे, आप वापस उन कामों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप खुदा के पाथ पे चलना शुरू करेंगे, जब आप खुदा के पाथ पे चलना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस पाथ में आपके लिए सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन है, प्रोविजन है और पीपल है। जब आप खुदा के पाथ पे चलना शुरू करेंगे तो उसमें क्या है? सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, पीपल एंड प्रोविजन। 3 P's, प्रोटेक्शन, पीपल एंड प्रोविजन। बोले प्रोटेक्शन, पीपल एंड प्रोविजन। लेकिन किस में है? खुदा के परफेक्ट प्लान में। और ऐसी बात नहीं है कि खुदा के प्लान में चलते चलते प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। एक दिन उसने रोया देखी थी, पौलुस रसूल ने रोया देखी, और रोया में उसने देखा कि हमें मकदूनिया के लोग बुलाते हैं, आओ हमें आके कलाम सुनाओ। चला जाते हैं, क्या होता है? प्रीच करते हैं, लोगों की जिंदगी भी चेंज होती है। लेकिन वहाँ पर एक औरत होती है जिसके अंदर बदबू आती है, और उसको जादूगर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जादूगर उसको, पौलुस रसूल को उठा के किसके हवाले कर देते हैं? हुक्मरान के। और हुक्मरान क्या करता है? उसको जेल में फिकवा देता है और उसको पाँव में बेड़ियाँ। अब वो तो रोया में चल रहा है, बट उस वक्त ऐसा क्यों हुआ? उसके साथ ज़रूरी नहीं जब आप खुदा की विल में चल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, बट वो आपको हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए पावर देगा। आमीन। इसलिए इससे भी कंफ्यूज नहीं होना कि यार मैं खुदा की विल में था तो ये काम गलत कैसे होगा, और बार बार खुदा की विल को छोड़ के आप बाहर चले जाएं, क्योंकि आपको लगे कि भाई अगर ये खुदा की विल होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। समझ रहे हैं? अब अगर मिनिस्ट्री में फाइनेंसेस नहीं आ रहे तो क्या खुदा की विल नहीं है? नहीं, खुदा की विल है। कभी कभी फेथ रखना पड़ता है, कभी कभी हम नेग्लिजेंट बने होते हैं, कभी कभी हम इग्नोरेंट बने होते हैं। बट मैंने कहा ये इतना वास्ट टॉपिक है, सारी जिंदगी लग जाती है खुदा की विल के टॉपिक को समझने में। लेकिन इसको इजीली, खुदा आपसे एक दिन में प्लान स्पीक नहीं करेगा, खुदा स्मॉल स्टेप्स बताता है। किस किस को समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? खुदा क्या बताता है? स्मॉल स्टेप्स। खुदा जबरदस्ती नहीं करता है, खुदा स्मॉल स्टेप्स में बात करता है। कौन से स्टेप्स में? स्मॉल स्टेप्स में। क्योंकि अगर खुदा आपको पूरा बता देगा तो आप कभी सुनेंगे नहीं। आप उठ के बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने इस साल बोला था कि अगर आप रोजाना उठ के बाइबल नहीं खोलते ना,
तो आप खुदा की बड़ी बात भी नहीं मानेंगे। किस किस को समझ आई? अगर रोज आप बाइबल नहीं खोलते हैं तो आप खुदा की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक बात नहीं सुन रहे। आप बेसिक डेली बेसिस पर उससे बात नहीं कर रहे, तो आपने और क्या करना है खुदा के लिए? और गोल ये नहीं कि हमने खुदा के लिए क्या करना है, गोल ये कि उसका प्लान हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलें। और एक लास्ट पॉइंट कवर करूंगी और उसके बाद ये बुक बंद कर रही हूँ। लास्ट पॉइंट, लोग समझते हैं कि खुदा ने प्रॉफिट्स और टीचर्स इसलिए भेजे हैं, अपोस्टल्स इसलिए भेजे हैं कि वो परफेक्ट जिंदगी गुजारें। वो ठीक जिंदगी गुजार भी देते हैं, पर आपको पता है इफ्सियों के खत में क्या लिखा है? कि खुदा ने प्रॉफिट्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, मेंटर्स, पास्टर्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ठीक करें। आपको समझ आ रही है? इफिशियंस की लेटर में जाके पढ़ सकते हैं। क्या मैंने बोला? पास्टर्स और टीचर्स लोग समझते हैं कि उन्होंने परफेक्ट जिंदगी गुजारनी है, और भाई वो आपके लिए भेजे गए ताकि आप परफेक्शन में चल सके, वो आपको करेक्ट कर सके, आपको टीच कर सके, आपको मोल्ड कर सके, आपको इनकरेज कर सके, आपको करेक्ट कर सके, आपको रिप्रूफ दे सके, आपको रिब्यूक कर सके और उनकी सुने। राइट टीचर खुदा आपकी जिंदगी में भेजेगा व्हेन यू आर फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड। जैसे मैं बाइबल स्कूल के लिए विल रखती हूँ, खुदा ने मुझे बाइबल स्कूल के लोग दिए जो मुझे बाइबल स्कूल को चलाने का तरीका सिखा रहे हैं। और एक दिन ऐसी मुझे रैंडमली लोग मिल गए जिन्होंने मुझे मदद की है मेरे KCBH के सिलेबस में, बहुत ज़्यादा मदद की, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। देखिए ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हम खुदा के विल में हैं। तो क्या आज आप रेडी हैं खुदा की विल को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए? अगर हैं तो हाथ बढ़ाएं, हाथ खड़ा करें अपना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की विल आपकी ज़िंदगी के लिए परफेक्ट है। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।